Hi everyone. Today we have Vishal Thakkar with us. He has secured All India rank 247 in this year's UPSC. Vishal's journey again has been one of those journeys which you see and you get inspired, as in how he has persevered through these years and how he has learned from his mistakes, and very meticulously how he has implemented or very meticulously how he has corrected those mistakes. And one major learning which we can take from his journey is that this exam, till the time you are in the process of this exam, you cannot be in the complacent mode, right? Because if you tend to get complacent, then things tend to move in a certain way. So Vishal today is with us. Welcome, Vishal. Thank you so much, sir, and thank you for having me. And you, as you rightly said, sir, this is the one key learning from my journey that you shouldn't be complacent till you get the your desired dream. Vishal, थोड़ा सा बताइए अपने बारे में. Give us a brief about yourself. Sir, मैं basically I am from Ahmedabad, Gujarat. I have pursued MBBS as a graduation from Gujarat University itself, and then I have come to this civil servant services examination because I was inspired by my father, and it was my dream also that we'll talk in the journey. And this was my fifth attempt where I got the rank 247, and my initial two attempts in 2020 and 2021, I was not able to clear prelims. Then in 2022, I got the prelims, but I failed in mains. Then I got into the reserve list through. Then I cleared everything in 2023 attempt, and I missed the finalist by 2 marks. Then I got into the reserve list, and I was fortunate to get Indian Railway Management Service. And currently, I am under training in Indian Railway Management Service. And in the next 2024 attempt that I gave, I was like grateful to get this 247 answer. Thank you. Great, Vishal. So Vishal, you got a reserve list the previous year in Yes. 2023, and thereafter you got into the service through the reserve list, and this year you got the name in your list, Yes. right? Vishal, you mentioned that in the first two attempts you couldn't qualify prelims. Uh, what was the lacuna, if you can identify on your front, कि क्या दिक्कत आ गई थी उस time? Sir, I think my major mistake was that I didn't understand that I should give enough respect to this exam. I should uh, be able to have a proper understanding that what this exam demands and how I should prepare. I went through into the exam by thinking that if I could read everything, then I would be able to clear it. So it doesn't work that way. I was able to read as much as possible because I had COVID duty also. I had my internship also. In a way, I was fighting many fronts instead of giving my full attention to this exam. So the major lacuna was that I didn't see to it that I this exam has my undivided attention. So if I don't give this exam undivided attention, then it won't give me back. So that was the major fallacy in my plan, sir. So in a way, till the time we do not understand this exam, not Yes. just for the sake of saying that, No. okay, I know the syllabus, I know which books to cover, No. but that thorough understanding of the exam, which eventually can help us to at least reach up to the interview level. Yes. Till the time we do not feel that has happened, Yes. we should not be hasty in jumping into this cycle. Exactly, sir. And you can see that in my 2022 attempt also that I failed mains. I had good marks in optional because I had the good background with me because I loved medicine and I loved MBBS. I still feel that I have given my best when I studied medicine. So, but I had some faults in understanding what essay, what GS demands, or what this whole UPSC demands.
So till the time you understand this whole thing by practicing previous year questions, practicing syllabus, getting into the full undivided focus and perseverance mode for preparing, and continuously analyzing not only the papers or the questions that are asked, but yourself also, that what you are doing in this journey. Until unless you do that for like Puneet sir also says in this, that this exam demands 1 to 1.5 year of preparation. That is very very true, and you can do that successively in your attempts, or you can do that in a go and understand that you have shaped yourself, that this exam requires. Vishal, one thing which I can resonate, Hmm. the other day I was talking with another topper, the same kind of gist was coming out Yes. that there has to come a point in this Yes. preparation wherein you will have to put in those 1.5 year. आप True. इनिशियली कर दीजिए तो बहुत अच्छा है, Yes. अदरवाइज लेटर ऑन वो कॉस्ट बढ़ता जाएगा एंड आपको पेन ज्यादा होगा. सो यू वुड एग्री टू दैट, राइट? So very true. जैसे anywhere, like I also say sometimes कि एक मैराथन है, वो आपको दौड़नी ही है. या तो आप पहले दौड़ के पूरा उसको पेस आउट करके चल सकते हो, या तो फिर आप पेन लेके चल सकते हो बीच बीच में समझ के कि अच्छा पाथ तो ऐसा था. तो rather than figuring out as you go, you can do that to some extent in some portions, because this exam like also the same way कि यहाँ पे सब समान है ये एग्जाम में. Everyone is equal, whether be it from IIT, me being a doctor, or be it someone else. वो आप फिगर आउट कर सकते हो ऑन दी वे कि आपके लिए क्या सही रास्ता है ये क्लियर करने का. But putting the hours, putting the blood, putting in the sweat is much much necessary. You do it in the beginning, तो फिर you will bleed less in the battle. That's the quote this exam needs. Exactly, this is Yes. what I believe as well. And Vishal, एक चीज इसमें, when let's say someone decides that okay, I will give 1.5 year solid for this preparation, Yes. and he or she has just started, Hmm. either just started or let's say after a break, जब थोड़ा बहुत चीजें खराब हो गई पहले, तब उन्होंने रीस्टार्ट किया Hmm. है. एक जो मेजर कंसर्न स्टूडेंट्स Hmm. के साथ ये आता है कि इनिशियल 2-3, एटलीस्ट 3.5 months ना, दे टेंड टू बी बिट स्लो. एंड Hmm. क्योंकि चीजें बिल्ड हो रही होती है, Hmm. कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बिल्ड हो रही होती Hmm. है, एंड दैट इज नेचुरल आई थिंक. Yes, sir. वहां पर कुछ स्टूडेंट्स को एंजाइटी होने लगती है कि हम Hmm. बहुत स्लो हैं, कैसे Hmm. खत्म होगी ये चीज. सो आप, व्हाट डू यू थिंक, इट्स ओके टू बी स्लो, द थिंग्स विल पिक अप लेटर ऑन, या फिर आपको शुरुआत से ही एक पेस मेंटेन करके चलना पड़ेगा? सर आई बिलीव कि स्लो और फास्ट का जो कंसेप्ट है ना, वो अगर इंसान खुद से फिगर आउट कर लेगा ना खुद के लिए, तो इट विल बी मच मोर हेल्पफुल. आई एज एन एज अ रूल पेस आउट करना वुड बी द बेस्ट थिंग. But a person shouldn't get anxious or depressed because he feels that he's relatively slow to another one or relatively faster to another one. It doesn't work that way in this exam. If you can find out your pace or your speed to finish the syllabus, to figuring out what this exam demands, or to do it in a such a way that uh, मतलब अगर आप खुद की स्पीड पहचान लेते हो, क्योंकि सर मैंने रियलाइज किया ये एग्जाम में कि ये एग्जाम पूरा का पूरा ना सिर्फ एक सिलेक्ट होने का तरीका है, बट खुद को खोजने का तरीका है. तो व्हेन यू सी टू इट दैट यू हैव द इनफ इनिशियल 3 मंथ्स, आपको जैसे सर मैं था तो मुझे इकोनॉमी पढ़ने में थोड़ा सा टाइम लगा, बट इन अदर वे हिस्ट्री मैंने फास्ट पढ़ी. तो मैं ये नहीं सोच सकता हूँ कि इकोनॉमी पढ़ने में मुझे देर लग गई तो आई एम बिट मैं पीछे हूँ स्लो. किसी. सो बस यही है, फिगर आउट करो कि आपको कहाँ पे स्पीड लेनी है, कहाँ पे स्लो जाना है. जैसे साइंस एंड टेक वाज माय बैकग्राउंड, सो इट डिडंट रिक्वायर मच अटेंशन टू इट इन टर्म्स ऑफ लेंथ और स्पीड. सो बस मेरा पेस आउट करते चलो, बट अकॉर्डिंग टू योर पेस, नॉट सम जनरल स्पेस.
Exactly. So, if the subjects are of the foundational Yes. nature, पॉलिटी, इकोनॉमिक, ज्योग्राफी है, Yes. यहाँ पर अगर आपको थोड़ा टाइम लग भी रहा है, लेट्स से हाँ. 5 days एक्स्ट्रा, 7 days हाँ. एक्स्ट्रा, देन दैट इज ओके, राइट? Okay. Yes. विशाल, एक सवाल आपने, यू व्हाट थिंग यू मेंशनड इज कि आई लव्ड मेडिसिन, Hmm. right? I loved my medical field, and in 2022 as well, despite being the lower GS and SS scores, you scored uh, very well in your medical field, medical optional. तो मैं इंटरव्यू वाला सवाल नहीं पूछ रहा, बट देन अगेन, व्हाई आईएएस और व्हाई सिविल सर्विसेज? Uh, सर आई थिंक आई लव्ड मेडिसिन वही रीजन है, क्यों? क्योंकि आई सॉ टू इट दैट अगर मैं ये हेल्थ वाला एस्पेक्ट या फिर मेडिसिन वाला एस्पेक्ट अगर हर एक फील्ड में हो सके उतनी फील्ड में ला सकूं, तो इट विल बी मच मच बेटर इन टर्म्स ऑफ वे। जैसे एक सर बहुत ही अच्छा संस्कृत स्लोगन है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। तो सब लोग सुखी होंगे और सब लोग निरोगी रहेंगे। अगर ये सर अगर लाइफ में हो जा रहा है, जैसे हम जो बेसिक कहते हैं ना कि रोटी कपड़ा मकान, वैसे अगर सिर्फ बेसिक हेल्थ अच्छा है, बट सर हेल्थ तो अकेला नहीं है। हम सर WHO की एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन है ऐसा पढ़ते थे, भले ही वो एक डेफिनेशन की टर्म्स में आ गई, बट वो धीरे धीरे रियलाइज हुआ इन माय होल 5.5 year ऑफ जर्नी। डेफिनेशन गोज लाइक दिस इज कि हेल्थ इज नॉट मेयरली एन एब्सेंस ऑफ डिसीज but complete well-being of physical, mental, and social. So I saw that मुझे अगर कहीं पे अच्छे से काम करना है, तो सिविल सर्विसेज वुड बी द बेस्ट प्लेटफॉर्म that can provide me with this sheer amount of scale, institution, and diversity, which which I can implement in such a way that if I am a doctor, then patient would be probably coming to me as a patient. But civil services, I can work in such a way I want to, that a person does not become patient. That's my aim. So I would be very grateful if I could realize this dream as much as possible. And this is only my prayer that I can do that through civil services. I am very grateful to civil services for that, sir. No doubt, Vishal. You will one day be doing that thing. So once you get into the services, you would be implementing your medical related knowledge in the administrative field. True, sir. बट विशाल, अभी जब हम बात कर रहे हैं फॉर द सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट्स, Yes. एंड जब ये हेल्थ वाला टॉपिक वी हैव डिस्कस्ड, एक Mm. मेजर कंसर्न और एक मेजर बहुत ही क्रिटिकल एस्पेक्ट एक Mm. एस्पिरेंट के लिए रहता है, प्रायोरिटाइजिंग देयर फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ इन दिस जर्नी, और खासकर जब जर्नी थोड़ी लंबी हो जाए, True, sir. ग्रेटर देन 2 years अगर हो जाती है वो, Mm. क्योंकि 2 years का तो एक नॉर्मल साइकिल है, Yes. ग्रेटर देन 2 years वो जैसे ही होती है, दिस टोल टेंड्स टू बिकम मच मोर हैवी। आप इस पर क्या, व्हाट वुड बी योर इनसाइट ऑन दिस? So this is very true, and I believe that in initial 2.5 year of my journey, I tried to focus more on studying rather than the physical aspect to it. But later I realized कि ये कंपार्टमेंट में वर्क नहीं करेगा। जब मेरा फिजिकल हेल्थ ठीक होगा तभी मेरा मेंटल हेल्थ ठीक होगा, और मेरा मेंटल हेल्थ ठीक होगा तभी मेरा फिजिकल हेल्थ ठीक होगा। तो इट वर्क्स इन इनफाइनाइट लूप। So, in a way, if you can identify your circadian rhythm means कि आप कहाँ पे फंक्शन बेस्ट करते हो। कोई रात को पढ़ के कर सकता है, कोई सुबह जल्दी उठ के कर सकता है, बट इन वे मुझे पता लगा कि मैं सुबह जल्दी उठ के पढ़ूंगा, मैं घर का खाना अच्छे से खाऊंगा, मैं अगर मेरा मिनिमम अमाउंट ऑफ रेस्ट ले रहा हूँ इन बिटवीन दी माय स्टडी आवर्स, आई गो फॉर अ वॉक फॉर हाफ एन आवर 1 hour, आई गो फॉर स्विम। सो मुझे उसको इग्नोर करके वहां पे मेरा स्टडी आवर्स नहीं डालना है, क्योंकि वो स्टडी आवर्स में आउटपुट नहीं आ रहा है। दैट आई रियलाइज्ड इन दिस वे। सो प्रायोरिटाइज योर फिजिकल हेल्थ, डू द एक्टिविटी दैट यू लव, बी इट रैकेट स्पोर्ट्स हो गया, क्रिकेट हो गया, या फिर जस्ट सिंपल वॉक हो गया इन अ पार्क। डू लिसन टू सम गुड म्यूजिक, और डू टॉक विथ योर फ्रेंड्स फॉर योर मेंटल हेल्थ एस्पेक्ट। जैसे सर आई वॉज फॉर्चुनेट टू हैव अ गुड सर्कल, जिसने मुझे पुश किया, जिसने मुझे इंस्पायर किया, जिससे मैं सीखा
कि Visarg, you can do it, because even Visarg had sometimes doubt he can Visarg do it. So I believe everyone has this doubt, बट उसके लिए आपको खुद को हमेशा देखते रहना होगा, या तो खुद की नजरों से या खुद के लाउड वंस की नजरों से. So please, I sincerely request my fellow aspirants to take care of your physical health, take care of your mental health, because it is intertwined, and just don't compartmentalize this journey. Wonderful, Vishak. Vishak, you rightly mentioned about the importance of physical and mental health, and almost all the aspirants would agree to it. I personally have seen a lot many aspirants मेरी खुद की journey में भी that the importance of physical and mental health. Still, what happens is कि I feel students tend to operate on the extremes. कि या तो बिल्कुल ही कुछ नहीं करेंगे या फिर बिल्कुल ही ऐसा है कि बस हेल्दी हेल्थ हो गई, अब पढ़ाई छूट ही गई है. तो आप बीइंग अ डॉक्टर और लेट्स से बीइंग अ एस्पिरेंट या जिन्होंने सक्सेसफुल इस चीज को इम्प्लीमेंट किया है, व्हाट आर द बेयर मिनिमम विच यू विल फील कि यार इतना एक एस्पिरेंट को अपनी डेली रूटीन में रखना चाहिए जिससे कि ही विल बी एबल टू मेंटेन दैट फिजिकल हेल्थ एंड मेंटल सैनिटी? कुछ ऐसे बेसिक पॉइंटर्स, 4-5 पॉइंटर्स जो आप शेयर कर पाए. Certainly, sir. I would say which I did, क्योंकि this journey tend to get monotonous if we think in such a way. So अगर routine में you have good time, 3 time food, good food, hygienic food, nutritious food, a wholesome food that we say in our medical language, not just some wherever you go and just eat, you don't have a plan that आज बाहर खा लेते हैं, कल बाहर खा लेते हैं. No, because you फूड ही एक चीज है जो सर एक कोड भी है कि लेट फूड बी योर डाई मेडिसिन. सो अगर फूड आपका ठीक है तो सब ठीक रहेगा. तो हैव अ गुड फूड. सेकंड सर, मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, हैव गुड स्लीप. हैव 6 to 8 hours ऑफ स्लीप, क्योंकि सर स्लीप इज द रीसेट, रीस्टार्ट, एंड इट हेल्प्स यू रीफोकस. ये तीनों चीज अगर एक कोई हमारी रूटीन में कर सकती है तो दैट इज स्लीप. तो फोकस ऑन स्लीप. थर्ड इज have some time, half an hour, 45 minutes for let's say this physical activity, walking or listening to the songs while walking. And sir, what I also did, my father also used to say me, 10 minute meditation. Just sit there. If you don't want to chant some mantra, just sit there and contemplate. सोचो या फिर बस ना सोचो तो बेस्ट है. बट अगर सोच नहीं जा रही है तो पहले सोचो, बट वो धीरे धीरे वो थॉट्स चले जाएंगे एंड यू विल फाइंड सम पॉइंट इन आफ्टर 2 मिनट 3 मिनट विचार शून्य परिस्थिति आ जाएगी. सो 10 मिनट मेडिटेट. एंड लास्ट वुड बी कि किसी से बात करो. कोई दोस्त है आपका, मम्मी पापा है, ब्रदर सिस्टर है, बट हाँ वो बात का समय निश्चित होना चाहिए. टेल सामने अदर पर्सन कि अगर मैं ज्यादा कर दे रहा हूँ तो उसको मुझे रोक दो. मतलब ऐसा नहीं है कि 1-1.5 घंटा 2 घंटा बात चली, नहीं. 15-20 मिनट आधा घंटा आप बात करो ताकि यू कैन रिजुवनेट. इट डजेंट मैटर कि वही बात करना है कि यूपीएससी में ये है, मुझे ये पढ़ना है, मुझे वो पढ़ना है. उनकी भी सुनो क्या हो रहा है क्या नहीं. दैट वे यू विल रियलाइज कि एक लाइफ नॉर्मल है, उसको जीते रहना है. तो बेसिकली यही है सर, ये 4-5 पॉइंट की वजह से यू विल स्टे सेम, एंड सैनिटी इज मोस्ट इम्पोर्टेंट सर. तो विशाल, अगर मैं इसको थोड़ा समराइज करूं हाँ. तो अच्छा खाना हाँ. खाने के लिए और थोड़ा उसको प्लान करने के लिए यस. 2 घंटे कम ना सोकर हाँ. आप अपने यूपीएससी को कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे हो, नहीं. इनफैक्ट आप उसको अच्छा ही कर रहे हो. अच्छा सर, बेटर कर रहे हो. एग्जैक्टली. और इनफैक्ट कॉम्प्रोमाइज तो दूर, कभी कभी सर हम बिगाड़ देते हैं वो करके. अगर आप 2 घंटा कम सो रहे हो, खराब खाना खा रहे हो, फिर या फिर आप फिजिकल हेल्थ इग्नोर कर रहे हो, किसी से बात नहीं कर रहे हो, बहुत लोगों से नहीं बट किसी अपने लव्ड वन से बात नहीं कर रहे हो, ये सब से सर एक ना एक दिन
वो कुछ ऐसा ब्रेक करेगा ना कि फिर वहां से वापस आने के लिए और मेहनत लगेगी। तो उससे बेटर है कि थोड़ा सा कंटिन्यूटी रखो, रूटीन रखो। सर दिस एग्जाम इज इन वन वे, इट्स रूटीन ओनली। तो जैसे वो चांदनी चौक टू चाइना मूवी है ना, उसमें अक्षय कुमार का फाइनल किसी से फाइट चल रहा होता है, तो उसमें उनके मास्टर उनको कहते हैं कि जो उनका रूटीन मूव है, तो वो रूटीन मूव में ही वॉज कटिंग दी वेजिटेबल्स, ही वॉज पुटिंग इन द राइस बैग, और फिर वो उसी मूव से ऐसे ऐसे करके या फिर ऐसे करके ही डिफीट्स द अदर पर्सन। सो इट्स योर रूटीन विल हेल्प यू, नॉट द एक्सट्रीम्स। एक्सट्रीम्स नीड्स, जब जैसे प्रीलिम्स है या फिर मेंस आ रहा है, तो मेंस में रूटीन में हम 8 घंटा नहीं लिख रहे होते, बट मेंस के टाइम पे हम लिख ले रहे होते हैं। सो दैट्स हाउ इट वर्क्स। जब मौका आ रहा है तब यू गो ऑल इन, बाकी रूटीन रखो। विशाल, आई गेस ये टॉपिक ना बहुत इंपॉर्टेंट है, हाँ, और इस पर हम थोड़ी और बात करेंगे। डेफिनेटली सर। क्योंकि व्हाट आई हैव सीन ना, स्टूडेंट्स थोड़े से, एक तो यूपीएससी का एक, यू कैन से दो, जो चीज ऐसी बना दी गई है कि भाई, जब आप इस प्रिपरेशन में आ गए तो आपको सब कुछ त्यागना पड़ेगा। हाँ। और सब कुछ त्यागने में स्टूडेंट्स टेंड टू मिस आउट ऑन देयर फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ एज वेल एज देयर सोशल हेल्थ। तो वो जो हम्म। एक आध दो इंसान से बात करनी जरूरी है, हम्म। उसको वो मिस आउट कर जाते हैं। हम्म। एंड व्हाट आई हैव सीन इज स्टूडेंट्स थोड़ा सा उल्टा करते हैं, कि जब नॉर्मल डेज ऑफ प्रिपरेशन चल रहा है, हम्म। एंड इन दोज टाइम्स दे वुड बी गोइंग एक्सट्रीम, कि 16 घंटे 14 घंटे उल्टा सीधा खाया, कोई फिजिकल मेंटल हेल्थ पर काम नहीं किया, राइट। एंड तब तक वो चीज धीरे 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 खराब होती चली जा रही है। जब एग्जाम 2 महीने पास है, 1 महीने पास है, जब एक्चुअली आपको एक एक्सट्रीम चाहिए होगा, कि शायद आपको 2 घंटे ज्यादा देने हैं, 3 घंटे ज्यादा देने हैं, मे बी यूल नॉट बी एबल टू डू मेंटल, थोड़ा फिजिकल एक्सरसाइज कम हो जाएगी, तब उन्हें ये चीज सताने लगती है। ये कि एंड दिस इज काइंड ऑफ द रिवर्स ऑफ व्हाट शुड बी डन, कि आप नॉर्मल डेज वेरी। में 8-9 घंटे पढ़ाई करिए, अपना चीजें बाकी सब करिए, एंड जब when the pressure situation comes either close to prelims or close to mains, तब आप बढ़ा दीजिए उन चीजों ये को। सर। एंड वो ब्रेक डाउन आता है क्लोजर टू द एग्जाम टाइम, एंड तब आपको रियलाइज ही नहीं होता कि यार ये तो एक्यूमुलेटेड ब्रेक डाउन है एक। एग्जैक्टली सर। और हम उस समय ये सोच रहे होते हैं कि अच्छा ये तो प्रीलिम आ रही है, उसका एंजाइटी है। नहीं सर, वो बिल्डअप हुआ होता है। इसलिए सर एक बहुत ही प्यारा संस्कृत श्लोक है कि एक विद्यार्थी को कैसा होना चाहिए। तो उसमें ऐसा है कि काक चेष्टा बकोद्यानम श्वान निद्रा तथैव च। मतलब कि एक कौवे जैसी चेष्टा, आपके अंदर एक क्यूरियोसिटी होनी चाहिए, एक जिज्ञासा वृत्ति होनी चाहिए। बकोद्यानम मतलब बगुले जैसा एक फोकस होना चाहिए, कि जैसे वो मछली को पकड़ने के लिए कैसे स्थिर रहता है। फिर है स्वान निंद्रा तथैवच, मतलब आपकी नींद सफिशिएंट इनफ होनी चाहिए, ना कि एक्सट्रीम्स में होनी चाहिए। फिर है अल्पहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षणम। मतलब अल्पहारी मतलब यू आर टेकिंग गुड फूड, यू आर टेकिंग न्यूट्रिशियस फूड, you are eating somewhat 20% less to what it is needed because you don't feel full. And grew tyagi, we are sitting in a library, we are sitting alone in some room, even at home we are isolating ourselves uh, with the so many friends, but कहीं कहीं तो हम पूरा विद्यार्थी ऐसे बन पाएंगे, नॉट इन एक्सट्रीम्स। कहीं पे भी अगर खाना पूरा बंद कर रहे हैं, या फिर निद्रा बहुत कम कर दे रहे हैं, या फिर हम घर को ऐसे त्याग दे रहे हैं कि मम्मी पापा को भी नहीं बता रहे कि व्हाट वी आर सफरिंग फ्रॉम। सो ये सब सर एक आइडियल स्टूडेंट, नॉट ओनली इन टर्म्स ऑफ यूपीएससी बट कहीं पे भी सर, इट डजंट वर्क दैट वे, दैट इट विल नॉट, इट सब अगर मतलब एक लाइन में कहूँ तो इट विल नॉट ब्रिंग द बेस्ट आउट इन। It won't be the Visarg that will be writing the exam if he doesn't um, uh, do routine or enough in good way. If he doesn't be a good vidyarthi. टू सस्टेन इन दिस Yes. प्रिपरेशन विशाल, हमें मध्यम मार्ग फॉलो करना है फॉर Yes. 90% ऑफ आवर जर्नी। Yes. और जो पेनेंस का पाथ होगा वो सिर्फ 10% ऑफ द टाइम दस होगा। परसेंट ऑफ द टाइम है सर। सर एक बहुत ही स्वामी, सॉरी मैं कोट्स कह रहा नहीं नहीं, हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है विशाल, आप हाँ, बोलते रहिए।
एक से स्वामी विवेकानंद जी का एक कोट है कि इनफाइनाइट पेशेंस, इनफाइनाइट परसिवरेंस, एंड ये बात बहुत अच्छा है कि इनफाइनाइट प्योरिटी इज द सीक्रेट ऑफ सक्सेस इन अ गुड कॉज. सो इफ यू हैव गुड वाई फॉर दिस प्रिपरेशन, तो सस्टेन रहो, मध्यम मार्ग में रहो, पेशेंस रखो, परसिवरेंस रखो, और प्योरिटी रखो. पेनेंस अपने आप सर, कौन सा 6 घंटा 2 दिन पेपर 2 साल और आर पेनेंस, कि जहाँ पे हम मेहनत कर रहे हैं पूरा, 3 दिन 5 दिन में लगे हुए 27 घंटे का पेपर लिख रहे हैं. सो इट इज वेयर आर वी हैव टू गो एक्सट्रीम्स. बाकी Right. सर, बी सस्टेन, बी परसिवियर, हैव परसिवरेंस. एग्जैक्टली. दैट्स इट. पेनेंस से मेरा मतलब विशाल वो भी था कि कभी ऐसा हो जाता है, लेट्स से वंस इन 15 डेज, वंस इन 20 डेज, कि आप सिलेबस से थोड़ा पीछे हो गए हैं. हाँ सर. तो वहां पर ठीक है, इट्स वन नाइट की आपने थोड़ा सा खींच दिया चीजों को, हाँ, आपने एक आध सोशल गैदरिंग को अटेंड कॉम्प्रोमाइज कर दिया, करिए. एक आध दिन एक्सरसाइज नहीं करी, दैट्स ओके. लेकिन आप इसको अपनी नॉर्मल दिनचर्या मत बना लीजिए, क्योंकि फिर वो ब्रेक डाउन बहुत ही खराब आता है. एग्जैक्टली सर, इसलिए सर एक ये भी तो चीज है कि अति सर्वत्र वर्ज्यते थे हम. आप कुछ भी ज्यादा कर दे रहे हो, बीट ज्यादा बहुत ही पढ़ रहे हो, कोई सोशल गैदरिंग में नहीं जा रहे हो, या फिर सभी सोशल गैदरिंग में ही जा रहे हो और पढ़ नहीं रहे हो, ये दोनों में से कुछ नहीं करना है सर. वंडरफुल यस. विशाल. यस. विशाल, जब आपने 2024 का मेंस लिखा, यस सर. आप ऑलरेडी एंड यू वर होपफुल कि मेरा रिजर्व लिस्ट में नाम आ ही जाएगा, यस सर. यू क्वाइट होपफुल. तो जब आपने 2024 का मेंस लिखा, आप सर्विस मिल चुकी थी आपको, ऑलमोस्ट एक यस. सर्विस मिल चुकी थी, ऑल्दो अलॉट बाद में हुई थोड़ा, लेकिन स्टिल आइडिया था कि सर्विस मुझे मिल जाएगी. स्टिल यू रोट 2024 का मेंस, एंड नॉट ओनली मेंस, हम थोड़ा सा अगर पीछे जाएं तो आपने प्रीलिम्स लिखा. प्रीलिम्स आपने उस टाइम पर लिखा जब आपको सर्विस लिस्ट में नहीं मिली, पीडीएफ में नहीं मिली, लेकिन कहीं ना कहीं दिमाग में था मिल जाएगी. यस सर. उस प्रेशर सिचुएशन में, प्रेशर इन द सेंस कि एक सैचुरेशन पॉइंट आ चुका होता है, सब कुछ मतलब चीजें चल रही होती है, और ठीक है, व्हेन वी अचीव सक्सेस तो में रेट्रोस्पेक्ट में सब थोड़ा थोड़ा आसान लगने लगता है. बट उस टाइम पर दैट प्रेशर कि मुझे अब प्रीलिम्स फिर से लिखना है और मेंस फिर से लिखना है, एंड सस्टेनिंग योरसेल्फ, एंड यही हम बात कर रहे थे, नॉट बीइंग कॉम्प्लेसेंट. हाउ डिड यू मैनेज ऑल दिस विशाल? सर, जब फाइनल लिस्ट में नाम नहीं था, फिर 2-3 दिन मैं उसको सोच रहा था कि क्यों नहीं आया, क्या नहीं आया. फिर पता लगा सर कि सिर्फ 2 मार्क्स से छूटा है. आफ्टर दैट पॉइंट आई रियलाइज कि मिल रहा है, बट इज इट माई ड्रीम, या फिर इज इट दी ऑल आई कुड डू. सो इट वॉज नॉट अबाउट कंपेरिजन ऑफ वन सर्विस विद द अदर. इट वॉज आस्किंग माई सेल्फ द क्वेश्चन that this is all you can do, this is enough, or what. So जब प्रीलिम्स देने की भी बात आ रही थी, इवन आई वाज इन थिंकिंग मोड कि मैं दूं या फिर आई शुड टेक अ ब्रेक ऑफ होल ईयर एंड गिव इट अगेन, मैं पूरा प्रिपेयर करके दूं फिर से उसमें. बट देन सर आई रियलाइज कि आई हैव डन दोज 1.5 year वाला पार्ट. नाउ आई नीड माइक्रो learnings, Improvements. micro improvements, those minute focus I should have for certain aspect. तो सर धीरे धीरे मुझे रियलाइज हुआ कि आई कैन गिव दिस अटेम्प्ट. आई डोंट हैव टू थिंक दैट मच. आई एम ऑलरेडी देयर. I have to just tweak certain things where I have to learn that did I go wrong. And sir, my inspiration or my motivation to come here was always there in my heart. So फिर मुझे पता लगा कि I shouldn't stop here. I should keep on going. I talk with my फैमिली फ्रेंड्स, मेंटर से बात की, पुनीत सर से भी मैंने बात की थी कि सर व्हाट शुड आई डू, क्या करना चाहिए मुझे. इनफैक्ट सर अभी भी मैं उनसे पूछ रहा हूँ कि वेयर टू गो फ्रॉम 247 रैंक. सो सर वो एक जील जो है ना, वो हमेशा रही, तो उसने पुश कर दिया. डाउट्स सर सर्टेनली मेरे दिमाग में थे. आई वुडंट डिनाई फॉर इवन अ सेकंड कि मैंने ये नहीं सोचा था कि नहीं मैं ना दूं. इनफैक्ट सर प्रीलिम्स देने के बाद भी, प्रीलिम्स का जब रिजल्ट आया तभी भी मैं सोच रहा था कि मैं मेंस कैसे करूंगा.
कहाँ इंप्रूवमेंट करूंगा, आई नीड 50 मार्क्स ऑफ इम्प्रूवमेंट हियर एंड देयर, एवरेज आउट करके वहां पे। सो व्हाट आई फील इज सर कि जब भी ऐसी कोई सिचुएशन है, आस्क योर हार्ट, आस्क योर लव्ड वंस, एंड अंडरस्टैंड, दोनों करो, मतलब फिलोसॉफिकली भी जाओ, खुद से दिल से पूछो और लव्ड वन से पूछो, एंड रैशनली भी जाओ, खुद की प्रिपरेशन को देखो, खुद की तैयारी को देखो, खुद के पेपर्स को साथ में लेके बैठो। अगर दोनों जवाब हाँ रहे तो गो फॉर इट, कहीं तो ये अलाइन हो जाएंगे एंड यू विल फील कि हाँ आई शुड कंटिन्यू। तो विशाख, जब 2023 के फाइनल रिजल्ट के बाद नहीं दिखा था लिस्ट में नाम, हाँ, तो वहां से आगे बढ़ने में फियर भी था, डाउट भी था, certainly sir. सस्पिशन भी था, हजारों सवाल थे कि कहाँ से ये गाड़ी, या कहाँ हम आगे चलेंगे। Yes लेकिन sir. स्टिल दैट डाउट वाज हैंडल्ड with your own you can say mental strength, Yes. support of the others, and an Yes. objective analysis of your Objective, preparation. सर्टेनली सर, ये तीन वाज द की। और सर एक जो ये जर्नी ने मुझे सबसे ज्यादा चीज सिखाई है कि जब ओपन माइंड होता है ना, दिमाग खुला होता है ना, तो इट ट्रांसफॉर्म्स अनसर्टेनिटीज इनटू अपॉर्चुनिटीज। तो ये तीनों चीज, बीट ऑब्जेक्टिव एनालिसिस, बीट टॉकिंग विद लव्ड वंस, बीट लुकिंग एट योरसेल्फ, ये तीनों चीज मुझे ओपननेस से आई। तो आई वुड से टू एनीवन दैट बी ओपन, just be open to any idea, be open to any possibilities there are। तो उससे अनसर्टेनिटीज कम होते 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 यू कैन टेक द चार्ज टू टर्न इट इनटू अपॉर्चुनिटीज। Exactly, जितना डायनामिक यूपीएससी हो चुका है, that यस, demands not only about UPSC but it's इन, about life, that we यस, should be acceptable about what is happening ट्रू सर। around us। यार, ओपननेस की आपने बात की, तो जस्ट एक छोटा सा मेंशन कर देते हैं। अगले यस, हफ्ते प्रीलिम्स है, तो दिमाग खुला रख कर ही प्रीलिम्स देना है। यू वुड एग्री टू बस इट? सर, 100%। अगर मुझे एक ही एडवाइस कोई देने को बोल रहा है, कुछ और मुझे बोलने के लिए ही मना किया गया है, तो फिर एक यही चीज है कि बी ओपन, be open to yourself, be open to UPSC, be open to options। अब शांत रहिए। अभी प्रीलिम्स और इटसेल्फ सर, जैसे आपने भी कहा कि पूरा लाइफ हैज बिकम द माइंड गेम। अगर आप खुद को काम रख पर है सर, हम क्यों सब, व्हाई वी ऑल आर थाला फैंस, धोनी फैंस, राइट। जस्ट बिकॉज ही हैज द कूलनेस इन हिम। व्हाई वी लव रॉजर फेडरर, because he has that coolness in him. When he plays that point to the fullest extent possible. He is in that moment present. So I would say to it that जाओ मजे से एग्जाम दो और ओपन दिमाग रखो, एंजॉय बस। करो। एंजॉय, एग्जैक्टली सर, एंजॉय करो सर। विशाल, हम्म, इसी कंटेक्स्ट में दो चीजों की मेंशन आपने किया था, उस पर थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। एक, आपने मेंशन किया कि आई हैड अ सर्कल अराउंड मी यस। जिसने मुझे पुश किया। एंड सेकेंडली, यू आल्सो मेंशन कि कुछ चीजें अपार्ट फ्रॉम यूपीएससी भी आप करते रहिए थोड़े थोड़े टाइम के लिए। बेसिकली आई थिंक यू मेंट सर्टेन इंटरेस्ट, सर्टेन हॉबीज। यस सर। तो कितना टाइम दिया जा सकता है इन चीजों पर, और व्हाट आर द गुड ऑप्शंस फॉर स्टूडेंट्स, कि जिससे आप एंटायरली अपनी प्रिपरेशन को कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे? बिकॉज ये स्टूडेंट्स पूछते हैं फिर बार पुश, बार। यस सर। So first aspect about the circle, I was very blessed and fortunate कि मेरे पास अच्छी फैमिली से सपोर्ट है, अच्छे फ्रेंड्स है, और कुछ गुड मेंटर्स है, कि जिसकी वजह से आई आई वाज वेरी, आई हैड अ वेरी खुशी जर्नी टू बी ऑनेस्ट सर। मतलब अगर मैं पीछे जाके देखूंगा तो दर्द नहीं दिखेगा, हैप्पी मोमेंट्स ज्यादा दिखेगी। ऑल्दो इट वाज अ लॉन्ग जर्नी, जस्ट बिकॉज ऑफ माई सर्कल सर। जैसे पुनीत सर अपने मिरेक्युलसली हायर कोर्स में भी कह रहे थे अभी कि सर्कल इज व्हाट पुशेस यू, सर्कल इज व्हाट इंस्पायर्स यू, सर्कल इज व्हाट टीचेस यू द लेसन्स। कहीं पे गलत जा रहे हो ना, तो वहीं दो डंडे लगा के बोलेंगे कि विसर्ग ऐसा नहीं करना है, मैं तेरा दोस्त हूँ, सुन ले शांति से, पढ़ने बैठ जा, या फिर चल अभी आज तू 6 वीक से पढ़ रहा है। सर मेरे दोस्त ऐसे भी है जो बोल रहे हैं कि अरे तू बाहर नहीं निकला है 15 दिन से, चल आजा, आज शांति से कुछ नहीं करना है, सिर्फ कुछ खाने चलते हैं। सो फिर सर खाने में बातें होने लगती है,
फिर हम वी कैन आई कैन ओपन अप। सो सर्कल का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल अगर मेरी जर्नी में रहा है, तो उसने मुझे खुद को आइडेंटिफाई करने में हेल्प किया है सर। मैं पापा मम्मी से बात करूं, या फिर कोई मैं मेरे दूसरे मेंटर से बात करूं, या फिर मैं किसी दोस्त से बात करूं, ये तीनों अलग अलग पर्सपेक्टिव्स मुझे मिलते थे, जिसकी वजह से मैं ये जर्नी में खुद को आइडेंटिफाई करता गया। जैसे सर मुझे एक बहुत ही अच्छी एडवाइस मिली थी कि इफ यू डोंट ट्रस्ट योर आंसर इन मेंस, देन हाउ विल एग्जामिनर व्हाइल चेकिंग द आंसर फील द ट्रस्टेड फ्रॉम योर आंसर। आई राइट। नेवर थॉट इन सच वे कि मुझे जब मैं आंसर लिख रहा हूँ, क्योंकि सर आई समटाइम्स आई फेल्ट, क्योंकि ये एक और मैं चीज बताना चाहूंगा कि हम जो परफेक्शन के पीछे भागते हैं ना, तो हमें, क्योंकि हमें रियलाइज होता है कि हम परफेक्ट नहीं, बट हमारा सर्कल ये रियलाइज कराते हैं कि उनकी नजरों में तो तुम परफेक्ट हो, मम्मी के लिए तो आप सबसे प्यारे बेटे हो। सो मैं इससे ये कहना चाह रहा हूँ बेसिकली कि मैं जब आंसर लिख रहा था ना, तो मुझे ये होता था कि अरे मैं ये पॉइंट तो मिस कर रहा हूँ, अरे मैंने तो ये नहीं लिखा है, अरे मैं एक एक्स्ट्रा पॉइंट लिख सकता था। बट सर कभी भी कोई आंसर ऐसा थोड़ी होता है कि सारे पॉइंट्स लिख दिए हमने, या फिर कोई एक पॉइंट उसके बाद निकल ही नहीं सकता। नहीं सर, वो ही हमें रियलाइज करना है कि हमने जो प्रिपरेशन किया है, हमने बेस्ट से भी आगे दिया है, तो ट्रस्ट इट, फील इट, एंड फिर आगे बढ़ो। तो ये सब जो छोटी छोटी एडवाइजेस मुझे मेरी सर्कल से मिलती थी, उससे मैं कहूंगा कि प्लीज हैव अ रियली गुड सर। मतलब सर आई कुड फील दैट मेरे रिजल्ट से मेरा सर्कल मेरे से ज्यादा खुश था। एंड व्हाट मोर यू कैन बी ग्रेटफुल और ब्लेस्ड फॉर कि यू हैव सच पीपल अराउंड यू। एंड सो आई वुड से हैव गुड सर्कल सर। वेरी उसके ट्रू विशाल। उसके लिए बी गुड ऑल्सो, मतलब खुद भी अच्छे रहो, तब यू विल फाइंड अच्छे पीपल। यस, वो ऑब्वियसली पॉजिटिविटी विल अट्रैक्ट पॉजिटिविटी। पॉजिटिविटी। विशाल, यस। मुझे इसमें ऐसा लगता है कि हाँ। ऑल्दो हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं है, बट हम्म, स्टिल आई फील दैट you as an aspirant, a person as an aspirant हम्म, should have two kinds of circles. एक वो यूपीएससी वाला सर्कल हो जहां हाँ, पर आप पॉजिटिव यूपीएससी की बातें कर सको, बातें कर सको। क्वेश्चन डिस्कस कर लिया, एंड दैट शुड बी समवेयर लेट से दो लोग तीन लोग, बस ठीक। इससे ज्यादा ना हो। ठीक। और एक वो नॉन यूपीएससी वाला हो कि नॉन यूपी। जिसको जब आप फोन लगाओगे ना, तो आप यूपीएससी के अलावा ही सारी बातें करोगे बस, अदरवाइज, यस सर, ये, वरना फिर वो सैचुरेशन है। हाँ सर भाई, मतलब क्योंकि स्कूल के दोस्त थोड़ी यूपीएससी दे रहे हैं, अगर नहीं दे रहे तो उनसे बात नहीं करोगे क्या? नहीं, दोनों प्रकार के सर्कल होने चाहिए, एग्जैक्टली। और वो दोनों वो डिफरेंट वे में आपको हेल्प कर रहे हैं, दोनों ही। एंड सर वो अबाउट टेक। हाँ, ये सर। हाँ, मतलब क्या होता है, नॉन हम्म। यूपीएससी वाला भी आपको कभी कभी ना बोल कर कि यार तू ज्यादा बोल रहा है, तो ये कर रहा है, तो वो कर रहा है, तो थोड़ा सा नीचे आ जा। तो हाँ मतलब सर, दे ऑल्सो जस्ट हम्बल बैलेंस अस यू आउट, डाउन। हम्बल यू यस। डाउन, यस सर, बैलेंस यू डाउन। तो वो विश बहुत जरूरी है इसलिए। और सर अबाउट सेकंड एस्पेक्ट जो आपने कहा कि साथ में क्या कर सकते हैं, सो सर ये हॉबीज परस्यू करने वाला, फिजिकल हेल्थ पे ध्यान देने वाला एक एस्पेक्ट है ही। व्हाट आई ऑल्सो डिड अपार्ट फ्रॉम दीज बोथ थिंग्स इज रीड गुड बुक्स, listen to good podcast, understand that what life is, उसको broad way में देखो, meditate, have some spiritual or philosophical aspect in your life that you can pursue in one way. And second is sir कि also ये हो गया सर दूसरा बात कि जहाँ पे फिजिकल और उसके अलावा फिलोसॉफिकल स्पिरिचुअल वे में हो, बट थर्ड पॉइंट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट कि जहाँ पे आप लर्निंग पे फोकस कर रहे हो। जैसे आई डिड सम 2-3 diplomas along with my journey, be it in good governance, be in hospital management, be it in environment. So what you can do is कि identify what part you love, सी टू इट कि वो कहाँ पे पढ़ा रहे हैं, या फिर आप कहाँ से पढ़ सकते हैं, या फिर आप कहाँ से सीख सकते हैं। तो उससे क्या होगा कि यू विल बी कंटिन्यूअसली इन टू द लर्निंग मोड, क्योंकि एज आई सेड कि काक चेष्टा, यू शुड हैव द क्यूरियोसिटी इन यू। कभी भी अपने, हम कहते हैं ना, डोंट लेट योर लर्निंग डाई इन दी लाइफ, सीखना कभी बंद मत करो। तो वो इसमें भी नहीं करना है। यूपीएससी की जर्नी में भी खुद को अगर सिर्फ कहीं पे सीमित कर दोगे ना, तो थॉट्स भी सीमित आएंगे।
and mains interview or as an officer, you wouldn't want yourself to be सीमित. एक बाजू हम कह रहे हैं कि आउट ऑफ द बॉक्स आइडिया चाहिए, एक बाजू हम खुद को कहीं बॉक्स में बंद कर रहे हैं. सो दोज बोथ थिंग्स आर एक दूसरे से ऑपोजिट, Contradictory. कॉन्ट्राडिक्टरी है सर. Again, Vishak, that leads us to the same line of thought कि open mind रखिए, ओपन माइंड. learning oriented mind यस. रखिए. यस. लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि especially the students who are new into this preparation या फिर जिन्होंने एक fair share of struggle देखा नहीं है, what I feel is कि ना learning से they tend to equate it. Obviously, they realize it later, but they tend to equate it to the new micro content consumption, which is basically, I would say, the short form content and spending, decent amount of time on that thing and thinking कि उससे कुछ हो रहा है. मेरा ऐसा पर्सनली ऐसा मानना है कि आप कुछ मत करिए, वो ज्यादा अच्छा है rather than consuming that sort of content, क्योंकि वो आपके not only the UPSC thing, but वो कहीं ना कहीं आपको नॉन academically भी mentally भी it is taking you away from your journey or away from your goal. नहीं, certainly sir, it should be in line with UPSC. मतलब मैं जो हॉस्पिटल मैनेजमेंट भी पढ़ा तो because it was my, I had the background, I wanted to learn that how administration in hospital works so that I could correlate it with the UPSC. Why I studied good governance diploma is because I should understand how the governance works. Because sir, for me, governance background was not there, but UPSC demands it. So I had to understand it. So अगर आप जब भी लर्निंग का कोई सोर्स ढूंढ रहे हो तो सर अचानक से आई वुडंट बी स्टार्टिंग टू लर्न just for the example sake of it, I wouldn't be starting to learn uh, some physical sports अचानक से, बिकॉज उसका मेरा जो है उसको मैं कंटिन्यू रखूंगा ना, वो डिमांड है अभी. You can learn after you clear, you can learn after you have some time in life. अभी जो आप दूसरा भी एक्स्ट्रा सीख रहे हो उसको अलाइन रखो प्रेप से या फिर अपने इंटरेस्ट से. और दोनों सर, एक वो दो सर्कल हम बनाते हैं ना वेन डायग्राम सी सेट में, वो कहीं पे Yes, बीच yes. में वो इंटरसेक्ट होने चाहिए, अदरवाइज फिर सर दोनों ही अलग दिशा में चला जाएगा चीज. तो सही चीज सीखिए और ये सही तरीके से सीखिए. Am I बस. right, विशाल? ट्रू सर. यू हैव सम. विशाल, ऑप्शनल में आपका मैं देख रहा हूँ तीनों साल ही अच्छा स्कोर रहा है. ऑल्दो जो मुझे दिखा थोड़ा सा इस साल मुझे डिप भी दिखा. ऑल्दो आई डू नॉट नो एनीथिंग अबाउट मेडिकल साइंस ऑप्शनल, बट स्टिल स्कोर्स में वो रिफ्लेक्ट हो रहा है कि 2022 में आपका स्कोर आई गेस द हाईएस्ट था, देन थोड़ा कम हुआ, देन इस साल शायद थोड़ा और कम है. हो सकता है ये ट्रेंड ही हो मेडिकल साइंस का, बट एक क्या वो स्ट्रैटेजी है कि जिससे आपने कंफर्टेबल स्कूल तीनों अटेम्प्ट में बनाकर रखा, और क्या कुछ ऐसा आपने आइडेंटिफाई किया कि हाँ यार शायद ये गलती मुझसे हो गई थी इस साल और इस कारण ये स्कोर कम हुआ इस साल? सर्टेनली सर, अगर मैं रिट्रोस्पेक्टिवली जब सोच रहा हूँ तो मुझे लग रहा है कि एक ओवरऑल डिप जरूर है इस साल ऑप्शनल स्कोर्स में. बट माय मिस्टेक्स आर कि एक जो, चूंकि मैं एमबीबीएस के बाद सीधा आया हूँ, आई हैवंट हैड पीजी एजुकेशन और सम प्रैक्टिस, आई हैड ओनली डन माय इंटर्नशिप. सो पेपर टू का जो एस्पेक्ट है जहाँ पे अप्रोच टू अ पेशेंट और सम प्रैक्टिकल एस्पेक्ट आर मच नीडेड, वो कहीं ना कहीं मैं थोड़ा सा लैग कर रहा हूँ. इस वजह से जो एक कॉम्पिटिटिव एज आना चाहिए पेपर टू में, वो कहीं थोड़ा सा मिसिंग है, द प्रैक्टिकल एस्पेक्ट ऑफ इट. एंड इन द पेपर वन सर, जो ग्रे एरियाज है जहां से पूछा जा रहा है, वो इस साल मुझे लगा कि मैंने एक दो क्वेश्चन में मिस कर दिया. तो अगर मैं एवरेज आउट करके देखूं तो ये दोनों मिला के मुझे लग रहा है कि जो आई वाज एक्सपेक्टिंग सम 270s, आई हैव 15 मार्क्स लेस देन दैट. सो आई थिंक ये दो मिस्टेक अभी मैं आइडेंटिफाई कर पा रहा हूँ. और आई विल गो मच इनटू डिटेल कि और क्या मिस्टेक्स हुई है मेरी. बट ये दो एस्पेक्ट अगर मैं करेक्ट कर पाऊँ तो आई थिंक वो इम्प्रूव हो सकता है. एंड अबाउट द प्रिपरेशन थिंग इज सर कि फर्स्टली रीड वेल ड्यूरिंग योर यूजी डेज, बिलीव इन योर यूजी नॉलेज. अगेन सर जीएस वाला सेम थिंग कि हैव योर सिलेबस एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन विथ यू, understand that why this question is asked, analyze the pattern.
and identify what are your strong areas, what are your weak areas. uh, Prepare each and every subject point of syllabus, but जब आपको पता लग रहा है कि ये ज्यादा पूछा जा रहा है, कोई चीज कम पूछी जा रही है, जैसे कि बायोकेमिस्ट्री करके एक सब्जेक्ट है, उसमें मिनरल्स एंड विटामिन है, उसमें से उसका कॉस्ट बेनिफिट, या फिर फॉरेंसिक मेडिसिन का टॉक्सिकोलॉजी का कॉस्ट बेनिफिट, rather than some एनाटॉमी और फिजियोलॉजी का कोई टॉपिक उससे कम है, तो ये एनालाइज करके प्रिपेयर ईच पॉइंट, बट कहाँ पे ज्यादा जोर देना है, कहाँ पे थोड़ा कम जोर देना है, वो आइडेंटिफाई करो, यू वुड बी एबल टू डू गुड। और अगेन दो और चीज की, कीप अपडेटिंग योरसेल्फ। मतलब टीबी की गाइडलाइन आप पुरानी लिख रहे हो, उसका कोई पॉइंट नहीं, उसको आपको अपडेट करना है, उसको आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि सर अगर जर्नी लंबी हो गई है, आपने पास आउट पहले किया हुआ है, पर आप वही बुक्स पढ़ रहे हो और अपडेट नहीं कर रहे हो, तो you will not be able to reach that highest marks. Second is कि correlate with GS, जैसे कि पीडियाट्रिक्स का एक टॉपिक आता है कि डायरिया, द रीजन कॉजेज ऑफ डायरिया इन चाइल्ड, पर उसमें अगर आप, यू कैन पुट दिस नीति आयोग गुड प्रैक्टिस वेयर इन बिहार दे आर यूजिंग परिडॉल्स to increase the awareness and to reduce the deaths caused by diarrhea in under 5 age children. So correlate like this in the GS aspect. And last would be love medicine. Just love it. And you will be able to read and not get bogged down that syllabus तो बहुत बड़ा है. वो है. That is certainly there. But you will have to love it to do all this about himself. विशाल, इस पॉइंट पे मैं आने ही वाला था, आपने वो पहले ही मेंशन कर दिया। दैट वन, it's huge. The syllabus is huge. Like some options, other options like मैथमेटिक्स का बड़ा है, उसी तरीके से मेडिसिन का सिलेबस भी बड़ा है। एंड मेडिसिन वही ले सकते हैं स्टूडेंट्स ऑप्शनल जो कि इसका बैकग्राउंड रखते हैं, लेकिन कुछ ऐसे स्टूडेंट्स मेरे भी रहे हैं और दूसरे भी मैंने देखे जो आफ्टर यूजी वो इस चीज को दे डोंट लाइक इट मच कि मैं इसको एज ऑप्शन ले लूं, बट बिकॉज देयर सम इनर्शिया टू चेंज इट। एक आध साल निकल जाता है बट स्टिल दे काइंड ऑफ नाउ आर इन अ बिग डीपर कंफ्यूजन कि यार इसको छोड़ूं या पकड़े रखूं। तो क्या कोई पैरामीटर है कि जिसके बेसिस पर अ स्टूडेंट हु इज इन कंफ्यूजन कि वेदर आई शुड लीव मेडिसिन माय ऑप्शनल और शुड आई कंटिन्यू विद इट, क्या वो डिसाइड कर पाए इस चीज को? सर ऑब्जेक्टिव पैरामीटर ये है कि आर यू एबल टू कंप्लीट सिलेबस, आर यू गेटिंग मार्क्स इफ यू हैव गिवन एनी अटेम्प्ट in UPSC or in test series. There have been start 1 2 test series are there since 2 3 years. पहले थोड़ा कम होता था. Are you able to get marks? Third is कि are you able to consistently read that subject, be it 1 year or 2 year, or are you just reading for the sake of it कि मैं पढ़ लेता हूँ, थोड़ा सा लिख दूंगा तो 250 तक पहुंच जाऊंगा, 240 तक पहुंच जाऊंगा। अगर आपके दिमाग में ये थॉट है तो इट विल नॉट हेल्प। सो अगर कुछ ऑब्जेक्टिव पैरामीटर्स पे हम देखें तो ये सब आप रख सकते हो। और ऑब्जेक्टिव के अलावा अगर आप आपको लॉजिक से हट के ये देखना है तो क्या पसंद है मेडिकल, क्या आप उससे कंटिन्यू करना चाह रहे हो, क्या उसमें आप अपडेट खुद को करने की चाहना रखते हो, क्योंकि सर अपडेट हम क्यों करना चाहेंगे, क्योंकि मैं भी सोचूंगा ना, अच्छा ये था टीवी में तो ये नया आया है कि नहीं, अगर मुझे वो अंदर से चाहना ही नहीं आ रही है तो वाई वुड आई अपडेट माई सेल्फ। तो अगर वो चाह खत्म हो गई है, अगर मैं सिर्फ बिना लॉजिक के बात करूँ तो अगर वो चाह खत्म हो गई है तो सर इट वोंट बी feasible to continue with it. ऑप्शन चेंज Look, कर देना चाहिए। certainly, sir, because sir, after all, what you want is to clear the सिलेक्शन, राइट। selection. So that's why. वही विशाल, विशाल क्योंकि जरूरी था ये सवाल थोड़ा डिस्कस हाँ, करना, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स देखे हैं मैंने, वो ना देयर इज अ स्पॉट ऑफ बॉदर कि yes, शुड sir. वी लीव मेडिसिन मेडिकल साइंस और शुड वी कंटिन्यू विद इट एज एन ऑप्शनल, और उनके अंदर वो चाहत खत्म कहीं ना कहीं हो चुकी है। तो आई गेस द आंसर इज विद अस। Yes. विशाल, एक और चीज मैंने दो अटेम्प्ट के आपकी स्कोर शीट में देखी, दैट इन बोथ द अटेम्प्ट्स यू हैव हैड डिसेंट स्कोर इन जीएस 1 एंड जीएस 3। वन में स्टिल द एवरेज इज समवेयर अराउंड 100, 200, 105 Yes. एवरेज यहाँ रहता है।
GS3 is someone on the lower side. I would say 75-80 is the average जो रह रहा है पिछले 2-3 साल में. You had, let's say, GS1 में ठीक स्कोर रहा है आपका. GS3 में you would had +10 +12 marks above average. तो is there anything you can share with us with respect to GS1 and GS3 कि ये चीजें कर लो, मैंने की थी and this has benefited my scores? सर GS1 and 3 ऐसे पेपर है कि जो बहुत बड़े हैं कंपेयर टू GS2 and 4. यू विल फील कि सिलेबस ज्यादा है. तो इससे हम करते क्या है, मिस्टेक क्या हो जाती है कि गैप्स आ जाती है प्रिपरेशन में. अगर फिजिकल ज्योग्राफी अच्छे से आता है ना, तो ह्यूमन ज्योग्राफी में कहीं कुछ कमी रह गई होगी. अगर हमें एंशियंट हिस्ट्रीज अच्छा आ रहा है ना, तो सोसाइटी का कुछ एस्पेक्ट में मिस्टेक हो रहा है. तो सेम गोस विद इकोनॉमी. ठीक से हो रहा है ना, तो एग्रीकल्चर का एक क्वेश्चन बिगड़ जा रहा है. अगर एनवायरनमेंट संभाल ले रहे हो ना, तो साइंस एंड टेक में कुछ हो जा रहा है. तो सर मेन अगर बहुत सिंपल बेसिक कोई एस्पेक्ट है जिस रूल पे हम खेल सकते हैं कि एवरेज भी हम सारे सब्जेक्ट का सारे सिलेबस के पॉइंटर्स कर लेंगे ना, तो अबव एवरेज हो जाओगे. क्योंकि कहीं पे डिप नहीं आ रहा है. तो मेक श्योर कि डिप ना आए. फर्स्ट पॉइंट. सेकेंड पॉइंट इज कि जो एग्जाम्पल और वैल्यू एडिशन की हम बात करते हैं GS1 और 3 में, look for it in newspaper. Look for it. Identify your own example and value addition points. एडिटोरियल से मिल जाएंगे, या फिर आप इंटरकनेक्ट कर ले रहे हो चीजों को. सो एक मेन पॉइंट है कि आप जो 4-5 पॉइंट लिख रहे हो उसमें से 3-4 पॉइंट तो सिमिलर आएंगे सबके, बट कोई एक पॉइंट जो आपका कहीं से डिफरेंट आ जा रहा है, जस्ट फॉर दी वो या तो आप ढूंढ के कर सकते हो या फिर सोच के कर सकते हो. जैसे आपको कोई लेट्स से एक GS1 का क्वेश्चन था कि एंशियंट हिस्ट्री का रोल क्या रहा है इंडिया के डेवलपमेंट में. एंड यू आर पुटिंग वन पॉइंट फ्रॉम GS3 इनटू GS1 कि इंडिया हैज ऑलवेज सी टू इट दैट इट क्रिएट्स एथिकल वेल्थ. और उसमें आपका एंशियंट इंडिया भी वो रूल को फॉलो करता था, जब हम धर्म अर्थ काम मोक्ष वाला फिलोसॉफी या फिर चाणक्य वाला फिलोसॉफी. मतलब मैं बहुत क्रूड पॉइंट बता रहा हूँ, बट एक एक्स्ट्रा पॉइंट बता रहा हूँ जो थिंकिंग से आ रहा है. तो थिंकिंग अपना ओपन रखो, इंटरकनेक्ट करो GS1 3 2 4 कहीं कहीं सिलेबस से. वैल्यू एडिशन आइडेंटिफाई करो न्यूज़पेपर से या फिर कोई एक्स्ट्रा अपने जो भी सोर्स से हो. कोई भी वीकनेस कोई भी गैप्स मत रखो. अगर है तो उसको एवरेज आउट करने का कोशिश करो. देन से रिवाइज ठीक से करो, क्योंकि दे बोथ आर फर्स्ट पेपर्स ऑफ द डे वेयर यू आर दी एट योर मैक्सिमम स्ट्रेंथ. सो पूरा फ्रंट फुट पे खेलो, पूरा अच्छे से जाओ. और जब भी लिख रहे हो ना, डोंट टायर योर सेल्फ आउट इन पेपर. विशाल, यस. 2-3 फॉलो अप जस्ट यस पॉइंट्स सर. या फिर क्वेश्चंस हैं. एक कुछ मैंने देखा है, some students they tend to believe, or the market makes them tend to believe that GS1 is society. तो ज्योग्राफी हिस्ट्री तो भूल ही चुके होते हैं वो. लास्ट में जाके कहीं अगर अगस्त 20 को पेपर शुरू होने हैं तो अगस्त 5 को याद आएगा कि ज्योग्राफी हिस्ट्री भी है कुछ. तो और वहीं पर वो मतलब ये मान लेते हैं हम 150 मार्क्स तो आपने कॉम्प्रोमाइज कर ही दिए हैं, तो ज्योग्राफी हिस्ट्री छूट गया है तो फिर GS1 छूटेगा ही छूटेगा. छोटे गए. यू वुड एग्री टू इट कि आपको ज्योग्राफी हिस्ट्री को इक्वल रिस्पेक्ट देनी है जितनी वो डिजर्व करते हैं? Certainly, sir, because in last year UPSC might raise the amount to 100 marks per geography. इस साल ये हुआ 24 में कि सोसाइटी का नंबर ज्यादा आ गया था. कभी भी ये हो सकता है कि हिस्ट्री का नंबर ज्यादा आ जाए. तो वही है कि गिव इक्वल रिस्पेक्ट टू ईच सब्जेक्ट. हाँ, आप 10% सोसाइटी को ज्यादा दे सकते हो या तो 10% ज्योग्राफी को ज्यादा दे सकते हो, बट डजेंट मीन कि आप 100 से कम कर रहे हो किसी एक सब्जेक्ट को. क्योंकि उससे क्या होगा कि अगर वहां पे पैटर्न चेंज हो रहा है सडनली उस ईयर पे, तो यू विल फील कि क्या हो गया पेपर में. और उसके लिए तो हम नहीं जा रहे.
वी हैव टू बिल्कुल। गो विथ फुल। जैसे ये तो नहीं है ना कि कोहली वो स्ट्रेट ड्राइव ठीक मार रहा है तो इसका मतलब वो पुल शॉट की प्रैक्टिस नहीं करेगा। फिर क्या पता कि सामने मिचेल जॉनसन आ जाए तो फिर खेल खेल नहीं पाएंगे, वो थोड़ी चलेगा। बी वो प्रिपेयर्ड फॉर द बी वर्स्ट। प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट। राइट। यस। विशाल, एक चीज हमने आपने मेंशन की कि जैसे GS4 का कोई पॉइंट एक आधा उठाकर GS1 में लिख दो, तो ये कहीं ना कहीं इसमें दो एस्पेक्ट्स आते हैं। तो एक एक लाइन ऑफ थॉट ये कहता है कि GS1 में GS1 की लैंग्वेज लिखो, GS1 की चीजें लिखो। और एक लाइन ऑफ थॉट ये भी कहता है कि GS1 में आप GS2 3 4 की भी कुछ बातें लिख दो, वेयर योर मल्टी डायमेंशनैलिटी इज बीइंग शोन, आपको मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स दिख रहे हैं। तो are we talking about two different things, or these are just two different ways of looking at the same thing? Sir, I think you completely said it right कि these are two different ways to look at the same thing. Because GS1 की लैंग्वेज हमें जरूर लिखनी है, बट टू सम एक्सटेंट। और अगर आप एथिकल वेल्थ क्रिएशन का भी पार्ट लिख रहे हो ना, तो आई डिडंट से कि सिर्फ एथिक्स लिखो, उसको आपको घुमा के कनेक्ट तो करना ही है GS1 के साथ। उसको आपको क्वेश्चन के डिमांड के साथ कनेक्ट करना ही है। सो द मेन पार्ट ऑफ आंसर राइटिंग, व्हाई इट नीड्स प्रैक्टिस, इज टू कनेक्ट विथ व्हाट इज आस्क्ड, fulfill the demand that you will be able to do it, be it आप GS2 में लिख रहे हो GS4, इट डजेंट मैटर। उनको ये फील होना चाहिए एग्जामिनर को कि जब आप GS2 में GS4 लिख रहे हो, यू आर एबल टू कनेक्ट इट। वो GS2 का ही बात लिख रहे हो, बस यू आर कनेक्टिंग विथ द आइडिया ऑफ GS4 और सम पॉइंट। फॉर एग्जाम्पल विशाल, अगर हम इसको थोड़ा सा एग्जेम्पलीफाई करें फॉर स्टूडेंट्स, GS2 में मान लो देयर कम्स अ क्वेश्चन लाइक जहां पे वी आर समवेयर डिस्कसिंग कि पार्टी सिस्टम इन इंडिया हैज नीड्स सर्टेन करेक्शंस, या फिर पॉलिटिकल सिस्टम, पार्लियामेंट्री सिस्टम इन इंडिया नीड्स सर्टेन करेक्शंस। तो वहां पे एक आधा रेफरेंस पॉइंट दे दो GS4 का रिगार्डिंग एथिक्स एंड सो, रादर देन कि एथिक्स के अंदर एग्जामिनर को वो क्वेश्चन ढूंढना पड़ रहा है कि पार्लियामेंट्री सिस्टम कहाँ चला गया। कहाँ चला इज गया? इट राइट विशाल? यस सर। आप जब मोरल डेमोक्रेसी की बात कर रहे हो और इंट्रा पार्टी जब आपको क्वेश्चन पूछा गया है और उसमें आप इंट्रा पार्टी या इंटर पार्टी डेमोक्रेसी का बात करोगे, तो उसमें लिख दो कि मोरल डेमोक्रेसी आएगी कब, जब इवन इन द पार्टी पीपल विल हैव द वोट टू से दैट हु इज दैट लीडर। तो वो कनेक्ट करके आप दे रहे हो उनको कि भाई गवर्नेंस कब सुधरेगा, पॉलिटिक्स कब सुधरेगी, जब एथिक्स भी आएगा। सिर्फ हम उसको इलेक्शन लॉस चेंज करते जा रहे हैं सर, उससे तो होगा ही, बट क्या सिर्फ उसी से होगा? तो हम बस उनको एक डिफरेंट व्यू दे रहे हैं कि अच्छा इससे भी हो सकता है, बट हम कंटिन्यूटी रख रहे हैं जो पूछा गया है उससे। अ सेकंड एग्जांपल वुड बी यस। विशाल कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी पे अगर सवाल आया है, तो वो कॉन्स्टिट्यूशन की मोरालिटी पर सवाल है, वो मोरालिटी पर सवाल नहीं है। राइट। एग्जैक्टली सर। जब आप सबरीमाला वाला एग्जाम्पल यहाँ पे यूज कर रहे हैं, तो उसमें आप सोसाइटी वाला एंगल डाल रहे हैं, पर कैसे? कॉन्स्टिट्यूशन से कनेक्ट करके, उसको मोरालिटी के साथ जोड़ के, बट कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी के साथ जोड़ के, कि कॉन्स्टिट्यूशन कह रहा है कि सोशल जस्टिस टेक्स द प्रेसिडेंस। तो अभी। लैंग्वेज, सॉरी टू कट यस। यू विशाल, नो नो सर। तो लैंग्वेज और द सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ योर आंसर, लेट्स से GS1 का सवाल है, तो लैंग्वेज GS1 की हो, 70% GS1 ही हो उसमें, 70 75 मे बी 80% GS1 ही हो, एंड इट शुड बी ओनली जस्ट 10 20% जो 2 3 4 से उठकर आ रहा है, rather than the other way around. हाँ। यस सर। इन यही आप उसको समराइज करके कह सकते हैं कि उसको हमें ये लाइन ऑफ थॉट पे आंसर करना, कि Okay. इंटरलिंकेजेस है, बट आपको आंसर भी तो करना है। तो उसको तो रखना पड़ेगा 70 80%। 5 पॉइंट में से 4 पॉइंट आप GS2 के नहीं लिख सकते हो सोसाइटी के क्वेश्चन में। 4 पॉइंट तो आपको सोसाइटी के क्वेश्चन में सोसाइटी के ही लिखना है, बट वो जो पांचवा भी लिख रहे हो उसको भी सोसाइटी के साथ कनेक्ट करना है। तो बस वही है कि लिखना तो जो पूछा गया है वही है, जो एक्स्ट्रा लिख रहे हो वो बस उसके साथ कनेक्ट कैसे हो रहा है वही सर। इट्स ऑल, इट इज द प्रैक्टिस दैट एक नीड्स। एक और विशाल, जैसे अगर हम एसए की बात करें, GS1 की बात करें और GS3 की बात करें, इट कुड बी मेयरली अ कोइंसिडेंस कि हम इसमें लो स्कोर्स देख रहे हैं, एंड इट कुड बी
जस्ट बिकॉज कि यूपीएससी इसमें लो स्कोर दे रहा है या रिलेटिवली जीएस 2 और हम्म 4 से लो स्कोर दे रहा है, हम्म बट इट कुड ऑल्सो बी अ केस कि क्योंकि ये पहले पेपर होते हैं जैसे आपने मेंशन किया, तो वल्नरेबिलिटी ऑफ अ स्टूडेंट इन द फर्स्ट पेपर इज मोर, कि थोड़ा घबराया हुआ है, पैनिक ज्यादा है, वार्म अप नहीं तो हुआ। वार्म अप नहीं हुआ, एंड देयर इन इज अ टेंडेंसी कि आप 5-7 मार्क्स लूज कर गए अपना वहां पे। यस इज इट करेक्ट टू से? सर, आई डोंट नो कि किस वजह से यूपीएससी से डिप आ रहा है, बट व्हाट वी कैन डू कि हम उसमें ये 5-7 मार्क लूज ना करें इज वार्म अप। हम आंसर थिंक करके जाए, हम अपने आप को प्रिपेयर करें कि यू शुड स्टार्ट फ्रॉम द गो। मतलब ऐसा नहीं है कि 2 बजे के पेपर में हम अच्छा अभी तो हम वी हैव बिकम एनर्जाइज, नहीं। इट शुड बी एट 9 PM 9 AM। सो अपने आप को प्रिपेयर करो, अपने आप को मेंटली अलर्ट रखो, और बी हैव इनफ स्लीप आगे के दिन, बी हैव सम गुड फूड इन द मॉर्निंग जिससे यू हैव सम ग्लूकोज इन यू। सो ये छोटी छोटी चीज करके बी प्रिपेयर्ड ओवरऑल, कि तुरंत जाते ही मुझे आई हैव टू रन, आई हैव टू लाइक सडनली क्या वो शूट करना है हमको रॉकेट की तरह। वो सर आप जब रॉकेट ऊपर जा रहा है सब सबसे ज्यादा थ्रॉटल उसको वाइल गोइंग अप लगता है, वो हमें राइट, तुरंत स्टार्ट करना है सर, इग्निशन। अगेन टू द सेम पॉइंट कि कॉम्प्लेसेंट नहीं होना है। कॉम्प्लेशन नहीं होना है सर। राइट। विशाल, एसए में थोड़ा कम स्कोर दिखा यस सर। आपका। यस सर। इट कुड बी जस्ट लेट से, हो सकता है मार्किंग ऐसे हुई, बट देन अगेन कुछ आपने अगर आइडेंटिफाई किया और आप शेयर करना चाहें तो इट कैन हेल्प स्टूडेंट्स। सर्टेनली सर, मुझे लग रहा है जो 2-3 पॉइंट अभी स्कोर देखने के बाद मेरे दिमाग में आया है, आई स्टिल हैव टू गो मोर, बट 2-3 पॉइंट मुझे ऐसा लग रहा है कि आई आई एम फॉरगेटिंग द ओरिजिनलिटी इन माय एसे। मतलब मुझे लग रहा है कहीं मैं एक पैटर्न में लिखने का कोशिश कर रहा था, और सेकंड इज कि वो पैटर्न की वजह से फ्लो मैं बना रहा था रेदर देन वो फ्लो आ रहा था। फ्लो एक चीज ऐसी है कि जो आनी चाहिए, फ्लो बनाना नहीं पड़ना चाहिए। तो ओरिजिनलिटी, पैटर्न में ओरिजिनलिटी मिसिंग होना, पैटर्न में लिखना, फ्लो बनाना पड़ना। और थर्ड इज कि सर मैं थोड़ा, मुझे लग रहा है इस साल मैं उसको निग्लेक्ट किया ऑप्शनल और जीएस के कंपेयर में। आई डिडंट हैव मच प्रैक्टिस इन एसे दिस ईयर, एंड ऐसे में ओरिजिनलिटी या फ्लो किससे आता है? प्रैक्टिस से सर। तो डिस्पाइट नोइंग दिस आई डिड दिस मिस्टेक, सो आई वुड रियली रिक्वेस्ट कि ये ना करो। आई थिंक आई ऑल्सो हैव टू गो बैक टू द टेबल, कि मुझे देखना पड़ेगा कि ये मैं क्यों किया। इज इट बिकॉज ऑफ टाइम, और अगेन द पॉइंट इज कंप्लेसेंसी। सो विशाल, हाँ हाँ, सॉरी। नहीं नहीं सर, मे नहीं, बी आई ऑल्सो बिकेम कंप्लेसेंट, जो नहीं होना चाहिए। विशाल, अगर हम ये मानकर चलें कि लेट्स से यूपीएससी सेम स्कोर्स कंटिन्यू रखता है हम्म इससे में, जो कि थोड़े से इस साल मॉडरेटेड साइड पर ही थे। हम्म हम्म 100, 102, 105 वॉज अ गुड स्कोर दिस गुड। ईयर, 105 अच्छा यस। स्कोर था। हम्म और लेट्स जस्ट एज्यूम कि यही स्कोर यूपीएससी कंटिन्यू रखता है इस हम्म साल आने वाले मेंस में भी, हम्म और क्योंकि नंबर ऑफ डेज भी सेम ही है पिछले हम्म मेंस में और इस वाले मेंस में हम्म आफ्टर प्रीलिम्स, हम्म तो आपने प्रैक्टिस की बात की अबाउट इससे, हम्म हाउ मच प्रैक्टिस यू वुड सजेस्ट कि इतनी जरूर कर कर जाना फॉर ऐसे, सो एंड ऑब्वियसली प्रैक्टिस मतलब इंक्रीमेंटल इन इंक्रीमेंट। इम्प्रूवमेंटल यस प्रैक्टिस होती है वो। कितने आप चाहेंगे कि इतने इतने ऐसे जरूर लिख कर जाना अगर आप इस साल मेंस लिख रहे हो? सर, आई वुड से कि 6 to 8 ऐसे मिनिमम लिखो, मिनिमम। वाई सेड इज कि सिर्फ लिखना नहीं है उसको, आपको ये दोनों चीज में ढालना है, देखना है उसको। सिर्फ लिख के छोड़ नहीं देना है, मार्क्स आ गए 120 आप निश्चिंत हो, नहीं। वो क्यों 120 आए वो भी आइडेंटिफाई करना है, क्यों 140 नहीं आए वो भी आइडेंटिफाई करना है, क्यों 100 नहीं आए वो भी आइडेंटिफाई करना है। तो ये तीनों प्रोसेस जब आप करोगे 6 to 8 ऐसे में, तो आप खुद को जान जाओगे। और जब खुद को जान गए ऐसे में, तो फिर वो आप लिख आओगे। पर अगर ये नहीं कर रहे हो, फिर सर 25 ऐसे भी लिख रहे हैं, तो पॉइंट उतना नहीं बनेगा इफ यू डोंट आइडेंटिफाई योर सेल्फ while writing the essay. So its लेट number is there because just because you can analyze in proper way.
लेट्स से विशाल किसी ने एक भी एस्से नहीं लिखा है हम्म प्रीलिम से हम्म पहले तक, हम्म एंड अगर हम ये मानकर चले कि ओके 6 essays also you have to write minimum, bare हम्म minimum before going हम्म to mains, हम्म so is it like 6 essays translate into 3 FLTs, कि दो दो ऐसे लिख दे, या फिर कि आप हर 15 दिन में 3 ऐसे लिख लो, 4 ऐसे लिख लो, एंड देन आप मे बी 1 या 2 FLT दे दो, तो इट शुड बी अ स्पेस्ड आउट अप्रोच, या फिर आप FLTs दो फिर? सर आई वुड से कि एक दो एफएलटी तो रखो ही साइड में, क्योंकि वो गेम प्रैक्टिस तो करना ही है। बाकी आगे के ऐसे यू कैन पेस आउट खुद के हिसाब से, कि आपको अगर एक एक ऐसे लिख के एक वीक में एक ऐसे लिख के उसको आइडेंटिफाई करना है, या फिर आप एक साथ दो ऐसे तीन ऐसे लिख रहे हो एंड आइडेंटिफाई कर रहे हो। बट आई वुड से कि इनिशियली अगर एक भी ऐसे नहीं लिखा हुआ है तो एक एक लिखो, ताकि यू कैन सिट विथ इट, क्योंकि पेपर खत्म करने के लिए नहीं लिखना है ना। पेपर राइट। पेपर को लिखने के लिए लिखना है, खत्म तो सर प्रैक्टिस करेंगे तो हो ही जाएगा। तो ऐसे इसे वाला तो हो जाता है। ऐसे वाला हो जाता है। हाँ। मतलब for a student who is हम्म going to, let's say, start his mains preparation in let's say 10 days time from today, आप जुलाई मिड तक थोड़ा सा फाउंडेशनल्स ऑफ ऐसे क्लियर कर लीजिए, क्लियर एंड करिए, देन आप FLT वाले मोड में देन चले जाइए। एफएलटी मोड में चले जाओ। यस सर। ठीक है विशाल। GS4 में आपका स्कोर भी अच्छा रहा, कंसिस्टेंटली दिख रहा है स्कोर अच्छा रहा है, एटलीस्ट वो नहीं है कि बिलो एवरेज चला गया वो। और GS4 में विशाल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो रहता है वो ये रहता है कि पेपर कंप्लीट नहीं होता है। डू यू हैव समथिंग विच यू कैन शेयर कि पेपर कंप्लीट हो जाएगा आपका GS4 में इस चीज से? सर ये कैसे कंप्लीट आप कर सकते हो ना, वो आपको पता लगेगा प्रैक्टिस से। जैसे कोई स्टार्ट करता है वन पार्ट ए से और फिर पार्ट बी पे आता है। मैं सर पार्ट बी से शुरू करके पार्ट ए पे जाता था। बट अभी थोड़ा सा ट्रेंड ये बन रहा है कि पार्ट ए कैन गिव यू मोर मार्क्स इन वन और दी अदर वे, बिकॉज ज्यादा ओरिजिनलिटी वहां फाइंड आउट हो सकती है। ये कुछ एक थॉट प्रोसेस है। आई एम नॉट श्योर कि वो करेक्ट है कि नहीं, क्योंकि मैं इस पॉइंट पे आना चाह रहा हूँ ये बात से, कि मेक श्योर कि आप थ्रू आउट दैट 3 आवर, बीट पार्ट ए और पार्ट बी, यू आर डूइंग एग्जैक्टली फुल अलर्ट मोड इन ईच एंड एवरी क्वेश्चन। तो पार्ट ए ज्यादा मार्क देगा या पार्ट बी ज्यादा थोड़ा सा एवरेज मार्क देगा, वो आपके लिए, फॉर यू इट वोंट मैटर। व्हाई? बिकॉज यू आर गिविंग बोथ द इक्वल रिस्पेक्ट। 90 मिनट में छोड़ देना है पार्ट बी तो छोड़ देना है। ऐसा नहीं है कि वो 110 मिनट चलेगी और फिर पार्ट ए में कम मार्क्स आए, तो वो तो वैसा ही होगा। तो मेक श्योर कि यू आर गिविंग इनफ रिस्पेक्ट, प्रॉपर अलर्टनेस एंड रिक्वायर्ड फोकस टू ईच पार्ट ऑफ द पेपर। सेकेंड इज की रीड फास्ट। अगर आप एक बार लिख दे रहे हो, पढ़ रहे हो केस स्टडी, तो आइडेंटिफाई मेथड की केस स्टडी में यू नो। जैसे सर जो स्टेक होल्डर्स होते थे, उसको आई यूज टू हैव अ बॉक्सिंग सिस्टम इन माय माइंड। और जो एथिकल डिलेमास होते थे उसको अंडरलाइन या फिर वेवी अंडरलाइन करता था। तो जब मैं पहली बार ही पढ़ रहा हूँ ना, तो आई हैव अ सेट पैटर्न विथ मी, जिसकी वजह से केस स्टडी में अगर मैं दूसरी बार भी देख रहा हूँ ना, तो आई नो व्हाट इज व्हाट एंड विच क्या चीज कहाँ पे है। तो ऐसा एक पैटर्न आइडेंटिफाई करो जिसकी वजह से यू कैन रीड फास्ट। थर्ड इज की सर कि कोई एक फॉर्मेट्स बना लो, बट साथ में नेचुरल भी रहो। फॉर्मेट्स खत्म हो जा रहे हैं लिखने में। जैसे कोई केस स्टडी में पूछा है कि सॉल्यूशंस क्या है, फॉर्मेट में आपके 5 सॉल्यूशन है, 5 लिख दिए, तो अटक नहीं जाना है। नेचुरल फ्लो, मतलब अगर इफ यू हैव गुड हार्ट, तो एथिक्स में नेचुरल फ्लो निकलता जाएगा। जैसे राइट। एम्पथी वाला एस्पेक्ट फॉर्मेट में आपने लिखा हुआ है, बट आपको वो अगर नेचुरली हो तो फॉर्मेट में होने या नहीं होने का डिफरेंस मेक नहीं करेगा, वो निकल ही जाएगा एम्पथी का पार्ट। या फिर आपको कोई स्टेक होल्डर आइडेंटिफाई करना है, जैसे पूरा केस स्टडी खत्म हो गया बट कहीं पे कोई एक मदर एंड चाइल्ड का बात हो रहा था, आप चाइल्ड को भूल गए। वो आप नहीं भूलोगे इफ यू आर नेचुरल, मतलब इफ यू आर थिंकिंग इन एथिकल वे इन योर डेली लाइफ। सो आई वुड से कि बी नेचुरल ऑल्सो आफ्टर बीइंग इन सम फॉर्मेट। और सर लास्ट पॉइंट इज कि ये पेपर है जिसमें आपको सबसे ज्यादा प्रैक्टिस का जरूरत है, क्योंकि आप जो सोच रहे हो ना वो पेपर पे आना चाहिए, कीवर्ड्स पेपर पे आने चाहिए, एग्जाम्पल बहुत तेज निकलने चाहिए।
वो तब निकलेंगे जब इट हैज बीन इंग्रेन्ड इन यू। सो ये पेपर का सबसे ज्यादा प्रैक्टिस करो। क्यों? क्योंकि सर ये पांचवा पेपर है, ये थर्ड डे है। दिस इज, यू आर राइटिंग एट 2:30। इट मस्ट बी अगस्त है सर, सो ह्यूमिड होगा फॉर द मोस्ट पार्ट ऑफ इंडिया। श्योर। तो ये सब आपको ध्यान में रखते हुए लिखना है, तो सर पेपर कंप्लीट हो जाएगा। बस टायर मतलब मेंटली टायर्ड नहीं होना है सर। वो पुनीत सर कहते हैं ना मिराक्युलसली हायर बैच में, कि दर्द सह लूंगा पर हार नहीं मानूंगा। ये वाला पेपर वो डिमांड करता है सर। बिकॉज एट 4:30 PM इन द थर्ड डे यू आर रियलाइजिंग कि अभी तो क्वेश्चन लिखना बचा हुआ है। तब सर वो पुश आना चाहिए अंदर से। बिल्कुल सही कहा विशाल कि हम्म। हमें क्या होता है कि ऐसा लग रहा होता है क्योंकि एथिक्स का लास्ट पेपर होता है हाँ, ना, तो कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकली एक फॉल्स इंप्रेशन क्रिएट होता है कि मेंस खत्म हो रहा है। खत्म हो रहा तो है। वो लास्ट एक यस। घंटा जो होता है वो बड़े ही हम कॉम्प्लेसेंट हो जाते हैं एक घंटे यस में, सर। वाइल हमें डबल करने हैं अपने एफर्ट्स वहां पे। डबल करना है। बट वो धीरे धीरे जैसे 0.75x हो गए ऑफ द नहीं। नॉर्मल एफर्ट्स, तो वो नहीं करना है। एंड एक चीज आपने बहुत अच्छी मेंशन की कि थोड़ा सा स्पीड रीडिंग करनी है ऑफ द थिंग्स, क्योंकि एथिक्स में जरूरी है, अदरवाइज चीजें कंप्लीट नहीं होगी। कंप्लीट नहीं होगी। एक विशाल एक पॉइंट यहाँ पर आता है खासकर केस स्टडीज में, हाउ टू और वेयर एंड हाउ टू फाइंड द बैलेंस बिटवीन एथिकलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी। क्योंकि हम्म। एक कॉन्फ्लिक्ट हमेशा रहता है कि अगर मैं बहुत ज्यादा एथिकल चला जाऊंगा तो मेरी बातें प्रैक्टिकल नहीं लगेंगी। हम्म। अगर आई एम टेकिंग टू प्रैक्टिकल, शायद मैं ऐसा ना लगूं कि मैं एथिकल नहीं हूँ। हम्म। राइट। वेयर इज द मीडियन पॉइंट है कि कुछ मतलब बहुत ज्यादा ना हम एथिकल हो सकते, बहुत ज्यादा ना हम प्रैक्टिकल हो सकते, तो कुछ ऐसा है जिससे हम रिजॉल्व कर पाए। सर जैसे ये एस्पेक्ट कब आता है कि जब वी आर गिविंग सॉल्यूशन और वी आर फाइंडिंग सम एथिकल डिलेमास। तो उसमें वी हैव सम वे ऑफ राइटिंग थिंग्स कि शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म लिख रहे हैं, या फिर इमीडिएट या लॉन्ग लास्टिंग लिख रहे हैं, या फिर आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि उसका इम्पैक्ट क्या है। तो उसमें हम प्रैक्टिकल चीजें लिख सकते हैं ज्यादा से ज्यादा। बट व्हेन यू आर राइटिंग सम लॉन्ग लास्टिंग सॉल्यूशंस, या फिर यू आर सेइंग कि क्या हो सकता है, क्योंकि हम जो थियरीज पढ़ते हैं, हम जो आइडियाज पढ़ते हैं, इवन दे आर आइडियल्स। तो हमें कहीं ना कहीं लॉन्ग लास्टिंग में वो ड्रीम तो रखना ही है। तो राइट एथिकलिटी और लॉन्ग टर्म आइडियाज इन सच अ वे that shows that what is your vision, and what this practical solution provides is what is your mission. So both mission and vision should be written in the paper. You can जैसे अगर हम दोनों को 50-50 मान रहे हैं, तो डिपेंडिंग ऑन द क्वेश्चन यू कैन टेक 1 into 70, यू कैन टेक 1 into 30, यू कैन टेक 1 into 80, यू कैन टेक 1 into 20। बट किसी को भी, अगेन सर मध्यम मार्ग वाला जो हम एथिक्स के पेपर में सब लोग लिखते हैं, वही वाला एस्पेक्ट इधर भी आ रहा है। बस वे कहाँ होना है ना, वो क्वेश्चन पे डिपेंड कर जाएगा। जैसे अगर सर करप्शन की बात आ रही है, तो उसको हमें प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस देने पड़ेंगे। फिर जाके आप वो एथिकल वेल्थ क्रिएशन, या फिर आप पूरा मोरालिटी और इंटेग्रिटी पे बात कर सकते हो। बट अगर सर जैसे सोसाइटी में बच्चे को कैसे बड़ा करना है, या फिर उस एस्पेक्ट पे कुछ, जैसे मैं रैंडम एग्जांपल दे रहा हूँ, पर उस पे कुछ बात आ रही है, तो यू विल नीड योर चाइल्ड टू हैव ग्रोइंग अप विद हाई आइडियल्स। प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस तो देने ही है, बट वहां पे थोड़ा सा वेटेज इसका भी बढ़ाना है कि जहाँ पे वी आर गिविंग हिम सम पॉइंटर्स, कि जहाँ पे हम आइडियाज की बात करें, विजन की बात करें, वैसे। तो बैलेंस इट आउट। एंड विशाल, केस स्टडीज में खासकर, ऑल्दो हम्म। थ्योरी में भी आई थिंक दिस इज ट्रू, बट हम्म। केस स्टडीज में खासकर प्रैक्टिकलिटी वुड बी यस। वैल्यूड। वैल्यू। यस। क्योंकि सर बहुत ज्यादा आइडियल सॉल्यूशंस नहीं नहीं। देने हैं। हाँ, वो देने हैं कब, जब आप सर आइडियल सॉल्यूशंस को भी कनेक्ट कर रहे हो प्रैक्टिकलिटी के साथ। जैसे आपने लिख दिया कि अगेन मैं दोबारा वही एग्जांपल दे रहा हूँ, बट एथिकल वेल्थ क्रिएशन वाला आइडिया लिखा, बट उसको सर आपने फेसलेस टैक्स असेसमेंट के साथ जोड़ा, या फिर आपने उसको जीएसटी के साथ जोड़ के बताया प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस में, या फिर किसी इंसान को ऐसा करते हुए दिखाया कि वो टैक्स इवेजन नहीं कर रहा है, और फिर आपने वो जो एग्जांपल्स दिए विजय माल्या के, या फिर वो उसको कनेक्ट किया उससे। तो कनेक्ट करो आप। एथिकल सॉल्यूशंस भी दे रहे हो, हाई आइडियल सॉल्यूशंस, तो भी उसको प्रैक्टिकल में कैसे इंप्लीमेंट कर पाओगे, वो भी चाहिए।
मतलब तो इट शुड बी लाइक विशाल, हम्म, सॉरी कुछ कह रहे थे आप? नहीं नहीं, यस सर, इट शुड बी लाइक कि हाँ, इंडिया कैन ओवरटेक चाइना यस, इन द फ्यूचर। यस, बट अगर हम ये लिखते हैं कि 2 साल में इंडिया चाइना से आगे चला जाएगा, वो नहीं करना है। नहीं, बस आप रास्ता दिखाओ, व्हाई यू आर देयर। एज राइट। एन ऑफिसर भी क्या करोगे आप? 6 महीने में एथिक्स का पेपर लिख के 6-8 महीने में यू विल बी सिलेक्टेड। क्या करोगे? यू विल हैव दैट, आपको पाथ दिखाना है। आप वहां पे हो जहां पे यू विल वर्क फॉर इट। सो हाउ विल यू वर्क फॉर इट? वो वहां पे एथिक्स के पेपर में लिखना है 1 साल पहले बस। एग्जैक्टली भाई, दिस इज व्हाट आई वांटेड टू हम्म, कंफर्म, या फिर हम्म, जो आपसे मैं पूछना था हम्म, कि वेयर टू फाइंड एंड हाउ टू फाइंड अ हम्म, बैलेंस बिटवीन प्रैक्टिकलिटी एंड एथिकलिटी। हम्म, विशारक, आप कभी दिल्ली नहीं आए तैयारी करने हम्म, के लिए? तैयारी दिल्ली से दूर की, और कोई फाउंडेशनल आपने कोर्स भी नहीं किया, कोचिंग भी नहीं की? और अ नॉर्मल एस्पिरेंट, हम्म। आपके क्या वर्ड्स होंगे कि हाँ, प्रिपरेशन दिल्ली के बगैर भी पॉसिबल है, फाउंडेशन के बगैर भी पॉसिबल है, तो डोंट बी इन एनी सॉर्ट ऑफ फॉल्स इनसिक्योरिटी कि ये नहीं हो सकता मुझसे। सर बहुत सही बात कहा आपने कि फॉल्स सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी नहीं रखनी है, क्योंकि इट डजंट कम फ्रॉम द फैक्ट दैट इट डिपेंड्स ऑन अ प्लेस, इट डिपेंड्स ऑन यू। यू हैव द पावर कि आप कहाँ से बैठ के पढ़ रहे हो। वाई? बिकॉज अभी सर इतना डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज हो गया। मे बी 10, 15, 20 years बैक इट वॉज डिफरेंट थिंग। क्यों? करेक्ट। क्योंकि सेंट्रलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज था कहीं ना कहीं इन सम एस्पेक्ट। तो वो आप पे भी डिपेंड करता था और प्लेस पे भी डिपेंड करता था। अभी फॉर द लार्ज पार्ट ऑफ इट, इट हैज बिकम मोर डिपेंडिंग ऑन यू rather than place for the large part of it. हो सकता है कि कहीं पे इंटरनेट का कमी है और वो नहीं कर पा रहे, तो उनके लिए कोई सोल्यूशन होगा कि वो ऐसी जगह पे जाए जहां पे इंटरनेट है, क्योंकि वो एक लैकिंग है वो चीज का। बट खुद का लैकिंग सोच के कभी कोई प्लेस डिसाइड नहीं करना है। तो दिल्ली का सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि यस, इट कैन प्रोवाइड यू द रिसोर्सेज, इट कैन प्रोवाइड यू एवरीथिंग यू वांट इन वन प्लेस। बट इट डजंट मीन कि दूसरी जगह नहीं है। जैसे सर, आई वेंट टू दिल्ली ओनली फॉर फर्स्ट टाइम, मतलब मेनली फॉर यूपीएससी इन इंटरव्यू ओनली। तो हाँ, मुझे फायदा ये हुआ था कि आई कुड गिव मेनी मॉक्स इन दिल्ली एट वन प्लेस, सेकंड प्लेस, कहीं पे भी। हाँ, आई वॉज फॉर्चुनेट कि यहाँ पे भी सर, गुजरात में भी अहमदाबाद में स्पीपा करके इंस्टीट्यूशन है, उसको मैं दे पाया था। इट्स अ गवर्नमेंट रन इंस्टीट्यूट, सो आई वॉज फॉर्चुनेट फॉर दैट। बट फिर सर एसओएमपी, फिर बहुत सारी ऑनलाइन इंस्टीट्यूशन अभी हो गई वेर आई कुड कनेक्ट विद दी। जैसे सर, सबसे बेस्ट पार्ट था जो दोनों साल इंटरव्यू में था, विच वॉज पुनीत सर। वो इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम में उन्होंने सेशंस लिए, 1-to-1 लिए, उन्होंने हमारी डिलेमास सॉल्व किए, वो साथ ही रहे हमारे। फिर मिरेकल इस बार तो सर आई वॉज, मुझे अच्छा लगा था कि मिरेकुलसली हायर बैच भी वो पैरेलल टाइम पे स्टार्ट हुआ था, क्योंकि मेरा इंटरव्यू लास्ट में था। तो वो कुछ नया कंसेप्ट था सर का। इनफैक्ट द वर्ड इटसेल्फ सजेस्ट कि मिरेकुलसली हायर। तो ये सब कोर्सेज, इफ यू कैन फाइंड द राइट मेंटर, तो सर दिल्ली दूर नहीं है वाला हो जाएगा। सिलेक्ट होके यू कैन बी दैट। डोंट हैव सर्टेन फियर ऑफ मिसिंग आउट कि दिल्ली से ही होगा। ट्रस्ट जहाँ पे आप है, फाइंड द राइट पर्सन। जैसे सर जब मैं 2021 या 22 में था ना, तब मैं एसओएमपी से वैसे नहीं जुड़ा था। बट मैं एसओएमपी की टेलीग्राम चैनल पे था, जस्ट आई वाज ऑन द टेलीग्राम चैनल ऑफ एसओएमपी, एंड मैं पुनीत सर की स्टोरीज और वो सब पढ़ता था। तो इनफैक्ट वो मुझे इंस्पायर करता रहता था। फिर सर, व्हेन आई जॉइंड द एसए प्रोग्राम, व्हेन आई जॉइंड द इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम विद द पुनीत सर, आई वाज इन कांस्टेंट टच विद द पुनीत सर। देन आई कुड फील कि हाँ, अहमदाबाद रह के भी मेरे साथ पुनीत सर है ना। तो उससे मुझे एग्जैक्ट। फील, हाँ, उससे मुझे कोई मिसिंग आउट का फील नहीं हुआ, क्योंकि सर को बस मैं मैसेज करता था एंड सर वाज देयर। फिर मैं क्या और मतलब व्हाट मोर आई, मुझे ही पढ़ना है ना फिर तो बस मैं अहमदाबाद में रह के भी पढ़ रहा था। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि दिल्ली में आप बहुत ही ऐसा करके ना जाओ कि उसके बिना नहीं होगा।
फोमो मत रखिए फोमो किसी मत, भी चीज का। यस, फोमो मत। एंड फिर हम कह सकते हैं लबासना दूर नहीं है। हाँ, फिर हम कैसे, हाँ सॉरी माय मिस्टेक, दिल्ली दूर नहीं है, नहीं लबासना दूर नहीं है। राइट तो राइट सर राइट। इससे मैं ये भी कहना चाहूंगा कि आप किसी, जैसे मैं अभी कुछ यहाँ पे कह रहा हूँ या फिर कोई कह रहा है, तो उस पर आप थोड़ा सा बिलीव करिए कि अगर हम मतलब इन अ वे, इफ आई एम सेइंग कि रिसोर्सेज आर देयर, तो बिलीव इट। हाँ, खुद को कौन सा रिसोर्सेज बेनिफिट हो रहा है वो आइडेंटिफाई करो, एंड don't have the FOMO. Again, once again, I am reiterating the same. But है सर, अब everything is available. एग्जैक्टली व्हाट दिस इज व्हाट इज हाँ, द करंट रियलिटी ऑफ टुडे yes, कि है सब कुछ अवेलेबल। बट ये ऐसा, अगर एक स्टूडेंट को फिर भी ये लगता है कि नहीं, आई सिटिंग एट माई होम और एट माई करंट प्लेस, आई फील आई हैव अ बेटर चांस इफ आई गो देयर बिकॉज माई करंट प्लेस डज नॉट अलाउ मी दैट सॉर्ट ऑफ एनवायरमेंट, yes, और वो yes. एक रैशनल एनालिसिस है आपका, Rational analysis है, तो exactly. आप जरूर जाइए फिर। तो जरूर चाहिए। राइट। अगले सर, मैं जो शुरुआत में ही कहा ना मेरी टॉक में, कि यूपीएससी को मैं जितना धन्यवाद करूं उतना कम क्यों है, बिकॉज ये जर्नी या फिर ये एग्जाम, इट हेल्प्स यू फाइंड योर सेल्फ। तो ये भी जो क्वेश्चन है ना कि दिल्ली जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, इट शुड बी फाइंड आउट बाय यू कि एग्जैक्टली। मुझे जरूरत है कि नहीं। और वो इट शुड बी बेस्ड ऑन रैशनल ऑब्जेक्टिव एनालिसिस, नॉट बिकॉज कि कोई और गया है इसलिए मैं चला जाऊं। ऐसे नहीं करना है। और इस ऑब्जेक्टिव रैशनल एनालिसिस में विशाल, वन, द पर्सन हिमसेल्फ और हरसेल्फ, और एक आध आपके आसपास जो लोग हैं जो चीजें जानते हैं, बस जानते। चुनिंदा लोगों की सुनिए, एक आध दो लोग की, और अपनी यस, सुनिए, एंड यस, देन द डिसीजन वुड नॉट गो रॉन्ग। यस। राइट। दिस इज व्हाट सर, जैसे हमारा अभी जो व्हाट आई वाज सेइंग सर, आई एम सॉरी आई फॉरगॉट। बट मैं कहना ये चाह रहा था कि जब हम खुद कोई अपने पर्सन से पूछते हैं और खुद से सोचते हैं, तो जैसे अगर कोई गाइड कर रहा है कि एसओएमपी का सेंटर फॉर लेट्स से अभी चंडीगढ़ में सर आई थिंक ओपन हुआ है, तो जी। चंडीगढ़ इज अ गुड प्लेस टू बी एंड स्टडी, बिकॉज एनवायरनमेंट भी है, फूड भी अच्छा है, रहने खाने पीने का अच्छा मिल जाएगा। तो अगर कोई परिवार से मम्मी पापा कह रहे हैं कि दिल्ली से ज्यादा चंडीगढ़ में रहो, तो उनका मान के चंडीगढ़ में यू कैन गो, rather देन फीलिंग दैट नहीं मेरा कोई दोस्त एक्स वाई जी दिल्ली गया हुआ है एंड दैट्स दी पेनिसिया। वो नहीं, ये दोनों चीज कंबाइन करके लुक विच इज योर कंफर्टेबल प्लेस। एग्जैक्टली, एनालिसिस ऑब्जेक्टिव हो, रैशनल हो, और आप कंसिडर करें चीजों को, आई गेस दैट टेक्स अस टू अ बेटर डिसीजन। सर्टेनली सर। विशाल, इतनी बातें हमने करी, आई गेस काफी चीजें हमने टच कर ली। आप अपने साइड से समथिंग यू वुड लाइक टू ऐड कि आपको लगता है हाँ ये चीज जरूर करनी चाहिए, या फिर भी मिस्ड आउट ऑन समथिंग? सर मैं कुछ अपने ही ओर से बस मैं जर्नी से गुजरा हुआ हूँ, तो फेलो एस्पिरेंट्स को कहना जरूर चाहूंगा, बट उससे पहले सर I would like to thank SOMP and Puneet sir with the bottom of my heart कि uh, I have seen why I love Puneet sir is कि I have seen that हमारा जो why है ना सिविल सर्विसेज में आने का, for service or for something, I can resonate that why with Puneet sir, because Puneet sir has that why, or I can feel that SOMP has that why they want to mentor us, because they want good people to come into services so that we can do good service. So I am thankful. उन्होंने हमेशा हेल्प किया है, उन्होंने हमेशा एनालिसिस में हेल्प किया है, उन्होंने हमेशा खुद को जानने में हेल्प किया है, उन्होंने डिफरेंट काइंड ऑफ सेशंस लिए हैं जिसकी वजह से हमारा नॉलेज ब्रॉड हो। उन्होंने फॉर द बेनिफिट ऑफ अस एसओएमपी की जो थीमेटिक नोट्स है वो हमको अवेलेबल करा दी थी जस्ट फॉर द इंटरव्यू, जहाँ पे हम अच्छे से प्रिपेयर कर पाए। फिर ऐसे उन्होंने लिया था इस बार 24 में, which was also the benefit for me. So I would like to thank Puneet sir from the I am grateful to Puneet sir and to you sir also
that you have always been helpful in this journey. And sir, बस दो तीन एडवाइसेस ये है uh, कि एक my favorite game is tennis, so there is I love also, मैं रॉजर फेडरर को बहुत पसंद करता था, बट धीरे धीरे मैं राफेल नडाल को भी पसंद करने लगा, just because of one sentence, that victory belongs to the most tenacious. I have never seen him getting tired on the court. He is running here and there. वो टेनासिटी खुद में रखो ये जर्नी में. सेकंड इज की बिलीव इन योरसेल्फ, believe in the people believing in you, and believe in the higher energy, or have faith in some भगवान में भरोसा रखो, कोई ईश्वर में श्रद्धा रखो कि वो कुछ चाह रहे तो वो होगा. थर्ड इज की find yourself in this journey. This is the best journey that you can go through to find yourself. क्योंकि जैसे सर अगेन वो एक छोटा सा डायलॉग है पिक्चर का कि किसी चीज को शिद्दत से अगर तुम चाहोगे तो पूरी कायनात उसको मिलाने में वो जुट जाएगी, बट उसका मीनिंग ये नहीं है कि कोई सीट या कोई रैंक. नो, इसका मीनिंग ये है कि शिद्दत से चाहने की वजह से आप जब खुद को उसमें झोंक देते हो तो यू विल फाइंड योर सेल्फ, एंड खुद को वो खोजने की वजह से यू विल डू गुड इन लाइफ. सो वैसे कायनात हेल्प करती है. एंड आई वुड ऑल्सो विश कि जो आप सीट और रैंक चाह रहे हो वो भी मिले. माई प्रेयर्स टू द गॉड. एंड एक और चीज जो पुनीत सर भी कहते हैं कि everyone is equal in this journey. Don't feel inferior, never. And बस ये है कि respect the exam, respect you, respect your surroundings, your loved ones, and find have the clear why, that why you want to come in this journey. And last would be कि जो एक भाग मिल्खा भाग का डायलॉग है वो लास्ट में पूछते हैं जब पाकिस्तान में वो रेस करने जाते हैं तब, कि वो एक कमेंट करते हैं कि मिल्खा ये तुम्हारी लास्ट रेस हो सकती है. तो मिल्खा का जवाब क्या होता है कि दौड़ूंगा भी वैसे ही. तो आपको भी वैसे ही दौड़ना है, बिकॉज वन डे यू, ये स्टॉर्म, अगर आपको ये पूरा चक्रवात लग रहा है आपके सराउंडिंग में, इट विल पास, and it will be able to inspire others. So take the pain of discipline instead of having the pain of regret. So all the very best to from my side to all the aspirants. Live this journey, enjoy this journey, and my best wishes that you all come out with flying colors, and hopefully मतलब you also come into this SOMP and have a topper stock also. क्योंकि सर मैं उस साइड था जब मैं किसी और का टॉक देखता था, and it was very helpful. So come on this side also with perseverance, patience, and purity, and all the very best. थैंक यू सो मच विशाल. जितने भी आपने बातें कही, खासकर जो लास्ट में कही, अपार्ट फ्रॉम व्हाट वी हैव डिस्कस, मतलब आई वुड से टू द 100% ऑफ एक्सटेंड वो बिल्कुल सच है कि बिलीव इन योर सेल्फ, बिलीव इन द पीपल हु आर बिलीविंग इन योर सेल्फ. एंड इसमें एक छोटी सी चीज जो मैं ऐड करूंगा शायद वो Yes, ये है कि रिस्पेक्ट दोज हु बिलीव इन योर्स, बिलीव इन यू. so true. आप उनके साथ दगा मत करिए. No, बी no, sir. ऑनेस्ट Never. टू देम जो आपके ऊपर विश्वास कर रहे हैं. इट कुड बी योर पेरेंट्स, इट कुड बी समवन इन द Mentor, फाइनेंशियल it वे. could be your definite. एग्जैक्टली एग्जैक्टली. तो विशाल बहुत ही अच्छा लगा आपसे बात करके. Same here. एंड ये तो पता लग गया बात करके, and वैसे भी वी नो कि यू वुड बी proving yourself as a great administrator, and you would be doing wonders in the service. Thank you, Vishal, for this wonderful talk. Your suggestions and advices, and across all the domains, they would be wonderful for the students, and बहुत अच्छे से उसको implement करें so that they see success in their journey. Thank Yeah. you so much, Vishal. Thank you. Thank you so much, sir, and thank you, Puneet, sir. Thank you, SOMP. And I hope that I stay true to my words, and hopefully I can do good. And all the very best to aspirants. Live this journey and live your dream. And hopefully you get good people in your journey, and you have good mentors in your journey. That because I believe, sir, life itself
मेंटर्स हम या तो कहानियों से ढूंढते हैं या फिर इंसानों में ढूंढते हैं। जो मिल जाते हैं ना तो रास्ता आसान और रास्ता चलने लायक और रास्ता मजे से कटता है। मुसाफिर हो तो जब हमारी नाव चल रही है ना तो उसको दिशा बहुत इंपॉर्टेंट है सर। आई यूज टू आस्क वन क्वेश्चन ओनली कि आई एम रेडी फॉर वट एवर अमाउंट ऑफ हार्ड वर्क इट टेक्स। आई वॉन्ट टू अंडरस्टैंड दैट एम आई गोइंग इन द राइट डायरेक्शन। एंड गुरु वो आपको देता है, तभी वो श्लोक है, ये गुरु गोविंद दोनों खड़े काको लागू पाए, बलिहारी गुरुदेव की गोविंद दियो बताए। वही है सर कि हैव समवन हु कैन गाइड यू एंड दैट विल हेल्प यू नॉट ओनली इन यूपीएससी बट इन लाइफ। एग्जैक्टली, पेन कम होता है, मजा ज्यादा आता है, चीजें यस, इजीली चीजें निकल आसान जाते हैं। इजी। ये सब 3 पॉइंट है बस, और कुछ नहीं। बस एग्जैक्टली। यही बात है सर। थैंक यू सो मच सर, इट वाज थैंक यू। प्लेजर टॉकिंग टू यू आल्सो सर, आई इट लव्ड वाज इट। अ प्लेजर विशाल, और बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट ऑफ विशेस फ्रॉम एसयूएमपी in your future administrative journey. थैंक यू सो Thank you. मच, Thank you थैंक so यू। much.